Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So in the last class, we have seen how to just work on the NumPy. So NumPy is numerical Python, and by the help of the NumPy, we can do mathematical calculation. ठीक है. Last time हमने देखा था कि अब कैसे से import करना है. NumPy is library which is present in my environment. So import NumPy as NP. This is as means is that alias and NP. I can use any abbreviation. ठीक है. It is not just like आपको NP use करना है. It's your choice. But generally it is notion that कि अब NumPy है तो short form it's NP use करोगे. Then difference देखा. What is the difference between list and the NumPy? List हमें पता है how to create array np.array by the help of numpy. Numpy के अंदर एक library sorry, numpy is a library itself. There is a object and there is, I can call it also, there is a function whose name is array. मेरे पास values हैं, collection of elements, and then I can create my array also. ठीक है. तो through the np.array आप क्या कर सकते हो, array create कर सकते हो. Then indexing देखा. Comparison between list and array. क्या डिफरेंस है, क्या जो लिस्ट है वो क्या मेमोरी क्या करता है, मेमोरी कंज्यूम ज्यादा करता है, बट इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन एरे देन इट टेक्स लेस मेमोरी. सिमिलरली फास्ट है, कन्वीनियंट है. लेट्स सपोज अगर मुझे लिस्ट में वर्क करना है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में वर्क करना है, तो डेफिनेटली मैं उसके कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पे वर्क नहीं कर पाऊंगा इंडिविजुअली, बट बाय द हेल्प ऑफ एरे हम लोग उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द बेनिफिट्स. Basic operation like how to just create array, simple, and then how to check their dimension also. If we want to just go into the higher dimension, we can also use it and dim. ठीक है. These are the things. अगर आप कास्टिंग देखा था, let's suppose in the array अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हायर हायरार्की का आ जाता है, तो सारे मेरे जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो सब डेटा स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट टाइप. ठीक है. उनका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप हो जाएगा. तो ये सब चीजें हमने कल देखा था. And let's suppose I want to change the data type of my present element, then definitely I can do also. ठीक है. By the help of mapping हमने देखा था कि A B C कोई भी हम बना के then respective columns के डेटा को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप. ठीक है. शैलो कॉपी एंड द डीप कॉपी में डिफरेंस देखा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शैलो कॉपी एंड द डीप कॉपी? शैलो कॉपी just giving the reference of the clone, but in the deep copy you are just creating the clone and their different references also with the respect to the variable. ठीक है. दिस इज अ डिफरेंस. तो हमने देखा था कि अब वो नेस्टेड पार्ट में शैलो कॉपी है. अगर नेस्टेड लिस्ट है मेरा, तो मैं अगर उसे डॉट कॉपी भी कर रहा हूँ फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो चेंजेस दोनों में रिफ्लेक्ट करेंगे. बट अगर मेरा सिंपल लिस्ट है, तो अगर शैलो कॉपी कर रहा हूँ तो मैं वैल्यू को यानी अपने जो वेरिएबल्स हैं ए और बी को, उन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूँ. मतलब जो बी में चेंज करूंगा वो ए में चेंज नहीं आएगा. But by the help of deep copy क्या कर सकते हैं? Let's suppose if I have a nested list and I am just copying from different variable, तो definitely I can work differently or separately on both the variables. सर जैसे नेस्टेड लिस्ट था, तो सर हम लोग ने जैसे कि मतलब डीप कॉपी यूज कर लिया सर, अगर मतलब टू लेवल की नेस्टेड लिस्ट हो तब भी सर वर्क करेगा वो? Deep copy is just kind of reference. आप क्या कर रहे हो? You are creating again clone. Let's suppose if I have that. This is my variable A, this is my variable B. In the shallow copy, I just created a clone, but again connected with a reference ID. So this is A, this is B. This is simple. Let's suppose A and B. If I'm just assigning, it means I am working with the same reference ID. Okay. But in the shallow copy, I'm just creating a clone first, but the reference ID is, I can say, with the connected with the reference ID. The clone reference ID is same. Sorry, clone reference ID is different. But if you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 1, 2, 3, then 8, 0, 0. The first three are
सेम मैंने बताया था, देयर इज, लेट्स सपोज देयर इज अ कंटेनर, इन द कंटेनर देयर इज अ रैक, and in the rack there is another rack. So this rack represents for 50 denomination, let's suppose, and this is for 10. तो लेकिन वो 50 के अंदर ही है, दैट्स व्हाई वो वर्किंग किस पे कर रहा है, आउटर पे. बट डीप कॉपी इज समवॉट लाइक दैट, क्या वो इंटरनली उसकी क्लोनिंग करेगा और उसकी अलग रेफरेंस आईडी क्रिएट करेगा. सो डेफिनेटली आपको अगर वर्क करना है तो जनरली कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपको ये वर्क करना है, इस पे वर्क करना है, so it's totally different concept and there is no such application especially in the case of this one, but इस पे हमें वर्क करना होता है. the reason is behind that it is kind of two dimension, so that's why this is a concept which is exists in the you can say in the Python. There is no such concept which is related to the nested part, which is a very reg nested part. There is no concept like that. But let's suppose if you have that kind of concept, because it is of two dimension, and similarly I can work just like an array also. So that's a concept behind it. So deep copy is just for sake of two dimension also, but if you go for the higher dimension, then definitely you can work also. So now come to the topic which is very important, is A range and linear space. तो पहले ये समझते हैं ये A range का concept है क्या. जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच रिलेटेड टू द रेंज. उसमें क्या होता था, लेट्स सपोज मैंने कहा मुझे कोई कोड क्रिएट करने एंड 0 to 1000 वैल्यूज के बीच में मुझे वो सारी वैल्यूज चाहिए जो प्राइम नंबर्स हैं, लेट्स सपोज. ठीक है, तो आप क्या करते थे, कोडिंग किया, बट ये जो रेंज आता था वो कहाँ से, बाय द हेल्प ऑफ, आई कैन से, ये जो मैं वैल्यूज क्रिएट कर रहा हूँ वो कहाँ से आएगा, मेरे रेंज फंक्शन से. ठीक है, सिमिलरली अगर ये numpy में वर्क करना है तो बाय द हेल्प ऑफ ए रेंज यू कैन क्रिएट योर डेटा ऑल्सो. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ए रेंज. जब रेंज पे वर्क करते थे तो डेफिनेटली 0 to 100 एंड देयर इज अ स्टेप साइज, और यू कैन से द जंप ऑल्सो. तो जंप मुझे इंटीजर में देना पड़ता था. ठीक है, यानी लेट्स सपोज 1 2 3 मे बी जो भी मैं रेस्पेक्टिव जंप देना चाहता हूँ, बट माई जंप शुड बी इंटीजर. बट इन द ए रेंज देयर इज नो सच थिंग. आप चाहो तो ये इसका जंप आप स्टेप साइज विच इज कॉल्ड एज फ्लोट भी दे सकते हो. सो दैट्स अ ब्यूटी. क्या जब व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द range function, especially in the data structure, then you won't give that step size into the float, but you are working in the numpy library and there's a function which is known as a range, then you can also work with the float step size. So a range is array. We are creating array of that range function, so that's why we call as a range. ठीक है, तो a array and range is same. So this is the difference. So let's suppose मैंने कहा okay Python np.arange यानी range create करो कहाँ से 10 to 100, but step size should be 50. So here you can see 10 and 60. Again range का function आपको पता है, there is a range. तो मेरे पास अगर 0 to 10 है और स्टेप साइज मैंने नहीं दिया तो डिफॉल्टी 1, तो 0 से 9 तक. सिमिलरली लास्ट वैल्यू इज एक्सक्लूसिव, इट इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, सो जो आपके पास अगर मैथमेटिक्स में लेट्स सपोज मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करूं, इट इज काइंड ऑफ क्या लास्ट वैल्यू जो है वो मेरा एक्सक्लूसिव है, इट इज नॉट काइंड इंक्लूसिव वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग क्या वो आपके पास वैल्यू आएगा. बट लेट्स सपोज आपने कहा ठीक है मुझे कुछ फ्लोट वैल्यूज चाहिए, डेफिनेटली यू कैन डू आल्सो. आपने कहा मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए 2.5 यानी स्टेप साइज 2.5 में चाहिए, तो देन यू कैन सी कि आपके पास स्टेप साइज आ जाएगा 10 10.5 15. तो आप स्टेप साइज भी ले सकते हो. आपने कहा कि मैं ये जो वैल्यू है विच इज 95.8, क्या मैं अपने जो वैल्यू है वो फ्लोट वैल्यू को इस तरह दे सकता हूँ, डेफिनेटली आप दे सकते हो. ठीक है, सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द ए रेंज इज दैट कि आप फ्लोट स्ट्रक्चर में भी वर्क कर सकते हो. सिमिलरली मैंने कहा मुझे थोड़ा अलग डिफरेंट साइज चाहिए, डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑल्सो. एंड द एरे इज सेम लाइक दैट, जैसे आपने स्लाइसिंग किया था. ठीक है, स्लाइसिंग में हमने कहा देयर इज अ रिवर्स, देन यू कैन डू इट ऑल्सो इन द सेम वे. इंडेक्सिंग इज द सेम जस्ट लाइक एस लिस्ट. तो आपके पास अगर लिस्ट है तो जैसे आप करते थे वहां पे रिवर्स कर सकते थे, तो इसी तरह आप यहाँ पे भी रिवर्स कर सकते हो. क्या मैं इसे एरे में लूप्स में क्रिएट कर सकता हूँ, डेफिनेटली यू कैन यूज इन द लूप्स आल्सो. तो np.arange 10
12.20.89, so there is a one dimension array. ठीक है, it's along the x-axis I can say, so that's why it is, you can work as just np.arange. Similarly, there are some lots of function, you can just use it by your own, you can do more practice. अगर मुझे नेगेटिव चाहिए, ठीक है, तो जैसे हम वहाँ पे रिवर्स करते थे रेंज के थ्रू, सिमिलरली here you can do also the same way. सर वो ऊपर जैसे जो वैल्यूज आ रही हैं सर, वो जैसे 18.1 है वो ठीक है सर, बाकी सर मतलब डेसिमल के इतनी लास्ट तक क्यों जा रहा है Which one? ये? सर जो Line number, मतलब line number. सर लाइन नंबर 610 सर, उसका Six, सर आउटपुट okay, 610। 610. यस सर, Okay. उसमें कुछ आउटपुट सर जैसे डेसिमल के 6-7 प्लेस तक जा रहा है, बाकी 1 प्लेस तक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? 10.0000000000, 10.900000, 8000000, अब इसे लास्ट में इस डेसिमल प्लेसेस पे कुछ वैल्यू मिल रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दैट. फिर ऐसे यहाँ पे 000000000, इस प्लेसेस पे जो वैल्यू मिली है ना, वहां पे भी उसे जीरो मिल रहा है, तो इसीलिए. तो देखो ओके 4 सर। 6, that's why it is showing in this way. Now you have lots of function, you know how to just manipulate these things by the help of 0.2f. You can just format these kind of values into the different value, into different structure also. You can, let's suppose if you want to get 0.3 decimal places, you can do it. You can do also np dot round with maybe 2 decimal 4 decimal places, you can do it also. We have already seen these things. ठीक है, तो अपने आप करके देखते हैं ऐसे कि हम इसे अगर राउंड फिगर में लेके आना चाहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस से, तो कैसे लेके आएंगे. ठीक है, मैं बता चुका हूँ. So definitely this is the arange function. So by the arange function you just create your data in float value also, so it is not kind of any limitation, just like in the list. Now there is another function which is linear space. Linear space is just like that. I can say there is a 1, there is a 5, oh no, is 1, and there is a 10 value, and it's 0, let's suppose. And I can say there is a 2 step size. तो ये क्या करेगा, इसे लीनियरली स्पेस करेगा, यानी ऑटोमेटिकली इसे लीनियरली मींस स्टेप साइज जो है वो उसका यूनिफॉर्म रहेगा. देयर इज अ 2 4 6 8 and 10. देयर इज अ स्टेप साइज व्हिच इज ऑफ 2 प्लेस, 2 का जंप, 2 का 2 2 एंड 2. तो लीनियरली स्पेस क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा ओके पाइथन 0 to 10 पे जाओ और इसकी लीनियरली स्पेस कितना, यानी 2 सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करो, यानी 0 5 एंड 10, यानी 2 सेट ऑफ वैल्यूज क्रिएट करने के लिए मैं पाइथन को बोल रहा हूँ. तो मीन्स दैट अगर मैं जो यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, मीन्स मुझे कितने सेट ऑफ जंप की यानी लीनियरली स्पेस की वैल्यूज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो कोड प्रोवाइड करेगा या डेटा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो लेट सपोज मैंने कहा ओके पाइथन 0 to लेट सपोज 9 है, मुझे इसकी 3 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए. ठीक है, तो 3 सेट ऑफ वैल्यूज मीन्स दैट अब उसे क्या करना है, 0 9 एंड देयर इज अ वैल्यू व्हिच इज 4.5. तो ये क्या करेगा, इसे लीनियरली स्पेस कर देगा व्हिच इज ऑफ 4.5 एंड व्हिच इज ऑफ अगेन 4.5. गॉट इट, लीनियरली स्पेस समझ में आया, यानी ये जो वैल्यू है व्हिच इज सेट ऑफ द वैल्यूज, और ये 3 वैल्यूज को लीनियरली स्पेस करेगा, यानी x1 x2 एंड x3. डिफरेंस बिटवीन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x3 माइनस का x2. गॉट इट, समझ में आया एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर स्पेस? यस और नो एवरीवन? यस सर। How can I reverse my name? It's simple, Swadhin. There are lots of Yes, sir. Yes, sir. wait. In the Python, there are lots of ways you can do these things. Let's suppose there is a way, and in this way you can do it. Simple. Python Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. automatically. And let's suppose if you know how to just work on the loops, if you know how to work on the, I can say, what defining function, please mute first. एक्चुअली सर मैं लूप्स तो गया नहीं सर, मैं लूप्स जब पढ़ूंगा सर मुझे क्वेश्चन आएगा सर, मैं पूछ सकता हूँ. Yesterday I was going through recording and it's very helpful for me, sir. Thank you, sir. Great. What, sir? What, Pritesh? No sir, means linspace
I think actually inserting means like I think sir. No, it is not just inserting the values. Insert means that you are just putting some values into your data structure. It is kind of, ये आपको क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है. प्लीज म्यूट. ये क्या कर रहा है, आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है. मे बी अगर आपको 0 से 100 के बीच में 10 वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको लीनियरली स्पेस करेगा. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ पे क्या है, यानी मेरे पास एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई है. तो अब ये क्या करेगा, लीनियरली स्पेस करने के लिए इसे एक एक शिफ्ट कर देगा. तो ये 10 वैल्यूज, 10 सेट ऑफ वैल्यूज करेगा. एंड देयर separation means is that you can say there is a gap between two values should be equal with the another values. Means if you just go for the next iteration, or I can say for the next value, the gap should be equal with the previous one. तो 0 से 10 के बीच में जो space है, there is a space, there is a gap, or you can say if I subtract these two values, then I get some answer. Let's suppose 10 and 10. तो जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज नोन एज लीनियरली स्पेस. यानी यू आर क्रिएटिंग योर डेटा बाय द हेल्प ऑफ लीनियरली स्पेस. देयर इज अ गैप बिटवीन द टू वैल्यूज शुड बी इक्वल विद द सक्सेसिव वैल्यूज आल्सो. तो आने वाली जो वैल्यूज हैं उनके बीच में जो सेट ऑफ वैल्यूज है वो भी इक्वल रहना चाहिए. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लीनियरली स्पेस. इसमें क्या होता था, ए रेंज में देयर इज अ जंप 0.5. So there is a jump means that you are just creating your data with a step size of 0.5. But in the linearly space means that you are just creating a data with linearly spaced. There is a gap between two values should be equal. तो ये इसका क्लासिफिकेशन है कि आप इस तरह से इसे वर्क कर सकते हो. अब लेट्स सपोज 1.5 है, ठीक है, 1 to 5, इसके यानी 1 से शुरू हो 5 तक जाए. There is a range and 5 is inclusive in this. 1 से शुरू हो 5 तक मुझे डेटा क्रिएट करना है, यानी 1 से 5 तक डेटा क्रिएट करना है. और कैसे करना है, 10 वैल्यूज में क्रिएट करना है. तो 10 वैल्यूज मींस दैट आपने सोचा ओके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, 1, 1.5, 2, 2.5, देन 3, 3.5, देन 4, 4.5, देन 5. आपने सोचा मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये 9 सेट ऑफ वैल्यूज हैं. तो मींस दैट थोड़ा और शिफ्ट करना पड़ेगा आपको इन वैल्यूज को, है ना. बट जैसे यहाँ पे 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, तो मीन्स दैट ये लीनियरली स्पेस हैं आपस में. यानी 1 ये लीनियरली स्पेस है, ये भी लीनियरली स्पेस है, यानी इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लीनियरली स्पेस. इट इज नॉट जस्ट लाइक इंसर्ट फंक्शन. तो यहाँ पे अगर 5 वैल्यूज हैं, मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो आई कैन डू माई इन दिस वे. लेट्स सपोज अब मैंने कहा इसे 10 वैल्यूज में क्रिएट कर दो. सो 10 वैल्यूज 1.44. तो अभी हमने देखा था लेट्स सपोज, तो इसी तरह ये लीनियरली स्पेस आपको क्रिएट करके दे रहा है आपकी वैल्यूज, ठीक है. अब मैंने 9 वैल्यूज, 9 सेट ऑफ वैल्यूज, तो ये 1, 1.5, 2, 2.5. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लीनियरली स्पेस. सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो, आप इट्स योर चॉइस. अब यहाँ पे क्या है, लास्ट जो वैल्यू है वो विच इज इंक्लूसिव, बट आपने कहा कि मुझे वो लास्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है. तो देयर इज अ आर्गुमेंट, आपने कहा एंड पॉइंट इक्वल्स टू फॉल्स. डिफॉल्टली इट इज ट्रू, बट इफ यू गिव दैट आर्गुमेंट एंड पॉइंट इज फॉल्स, तो वो क्या करेगा, उसे एक्सक्लूसिव कर देगा लास्ट पॉइंट को, ठीक है. गॉट इट, समझ में है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीनियरली स्पेस एवरीवन. सो हियर यू कैन सी देट्स अ 2 to 3. मुझे 2 to 3 जाना है, यानी 2 और 3 इंक्लूडेड है, बट कितने सेट्स में जाना है, 5 सेट्स में जाना है मुझे. तो इसके अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा एंड पॉइंट इक्वल्स टू 2 विच इज डिफॉल्ट. तो इट्स माय चॉइस कि मैं दूं या ना दूं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको 5 सेट्स में इंक्लूड कर देगा. अब 2 to 2.5, 0.25 स्टेप साइज, 2 to 2.5 to 2.5 अगेन 0.25 का स्टेप साइज. सो दैट्स व्हाई वी कॉल एज लीनियरली स्पेस, ठीक है. देयर इज अ रिटर्न स्टेप, यानी मींस दैट आप उसका जो स्टेप साइज है, देयर इज अ गैप, वो शो कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग स्टेप साइज दे देगा विच इज 2.25. अब लेट्स सपोज मैंने कहा ओके आई वांट टू जस्ट क्रिएट 10 values from 1 to 10. So there is a step size of 1, 1, 2, 3, 4. तो जो भी रहेंगी सारी सक्सेसिव वैल्यूज के बीच में जो गैप रहेगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है. there is a difference a range and the linear space. So now you can do lots of things there.
नाउ कम टू द पार्ट विच इज लॉग स्पेस. अब आई डोंट नो कितने लोगों को शायद मैथमेटिक्स में लॉग का पता होगा, बट no need to worry. So log is a logarithmic in the mathematics. So there is some base. Let's suppose there is a 10 base, there is a 2 base. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. लेट सपोज मैंने कहा ओके आई कैन से 4. ठीक है, दिस इज द वे आई कैन डू इट ऑल्सो. सो log 10 बेस ऑफ 2. तो डेफिनेटली हमें इसका वैल्यू किससे देखना पड़ेगा, लॉगरिथमिक टेबल से देखना पड़ेगा. बट थ्रू द numpy we can directly calculate their value also. Just how to do it, let's suppose there is a, but in the logarithmic let's suppose I have that 4 value means with a base of 10. तो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी 4 there is a value, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ with a base of 10 with anti log. अगर जैसे ये समझ में ना आए, नो नीड टू वरी, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड आपको कहीं यूज नहीं करना है इसे. ठीक है, बट देयर इज अ फंक्शन, सो आई विल जस्ट, तो यहाँ पे मेरे पास क्या log 10 बेस 4. ठीक है, तो मीन्स दैट अगर मुझे इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आई कैन डू सिंपली. बट अगर मुझे क्या करना है, पाइथन के अंदर यूज करना है विच इज ऑफ numpy. सो देयर इज अ लाइब्रेरी whose name is np.logspace. so in the log space I am just calculating their value. अब मैंने यहाँ पे उससे बोला ओके लेट्स सपोज 2 3 4. ठीक है, मैंने ये बोला. तो डिफॉल्टली अगर मैं पाइथन पे वर्क कर रहा हूँ और मैं उसे नहीं बता रहा हूँ कि अब मुझे किस बेस पे वर्क करना है, तो डिफॉल्टली क्या लेगा, बेस 10. सो बेस 10 मीन्स इज दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट log anti-log of this value with a base of 10. So anti-log of this value is 10 to power square, then again 10 to power cube, and then 4 10 to power 4. So this is a way. बट मैंने कहा ओके पाइथन आप क्या करो, 2 से लेट सपोज 10 तक जाओ विद आई कैन से साइज ऑफ 2 लेट सपोज. ठीक है, तो ये क्या करेगा, देयर इज अ वैल्यू विद अ स्टेप साइज. क्या मुझे 2 से 10 तक के बीच में जाना है, कैसे जाना है, विद अ 2 सेट ऑफ वैल्यूज, यानी 2 और 10. सिंपल. मैंने कहा ओके आप 4 पे जाओ, तो ये क्या करेगा, मुझे लेट सपोज 4 5 7 10. ठीक है, इस तरह से मेरी वैल्यूज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि स्पेशली इनका जो लीनियर स्पेस होगा वो यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, इट्स यूनिफॉर्म. तो ये अगर मैं इसका लॉग स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ तो विद अ बेस 10 to power 2 10 to power 5 10 to power 7 एंड 10 to power 10. तो ये मुझे उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज क्रिएट करके दे देगा. सो इट्स अ लॉग स्पेस. लीनियर स्पेस सेम. लॉग स्पेस इज दैट क्या मैं जो भी डेटा दे रहा हूँ उसकी 10 to power का डेटा दे रहा हूँ, यानी मुझे 10 to power का कैलकुलेशन चाहिए. सो हेयर यू कैन सी कि मैंने कहा 2 to 3 मेरे पास वैल्यूज हैं और कैसे हैं, विच इज नम ऑफ 5. अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूं, तो आप देख सकते हो 2 2.5 2.5 2.75 3. तो मीन से दैट मैं इसे अगर लॉग स्पेस में इसी वैल्यू को क्रिएट करता हूं तो ये क्या करेगा, 10 to power 2 which is the anti log, and 10 to power is 2.25, 10 to power 2.5, 10 to power 2.75, and 10 to the power is 3. So it's just creating the values with a base of 10. अगर आपको उसका बेस चेंज करना है, definitely you can work with the base of 2, just passing an argument with a base. It's simple. तो ये लीनियर स्पेस जैसा ही है, वर्क लीनियर स्पेस करेगा बट विद अ बेस ऑफ 10 कर रहे हैं क्योंकि हम लॉगरिथमिक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं. तो बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू यू कैन जस्ट डू दीस थिंग्स आल्सो. तो विद अ बेस ऑफ 2, विद अ बेस ऑफ 2 अब यहाँ पे क्या करेगा, 2 to power 2, क्योंकि आप किस पे कर रहे हो, बेस 2 पे वर्क कर रहे हो. ठीक है, 2 to power 2.25, 2 की पावर 2.5, 2 to power 2.75 एंड 2 the power which is 3. तो इस तरह आप वर्क कर सकते हो सिमिलरली विद द लीनियर स्पेस एंड द kind of log space with the base 10 and base 2. Now come to the part which is very important, dot reshape. So let's suppose मैंने कोई data create किया and my data is in one dimension. If I create my data by the help of np.arrange, अगर मैं इससे कर रहा हूँ तो किस डिमेंशन में है, 1 डिमेंशन में मेरा डेटा. बट आपने क्या कि मैं ये 20 का जो डेटा है इसे रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. मीन्स दैट आई वांट टू कन्वर्ट इनटू दी two shape. There is a x-axis and y-axis. How to do it? Simple. You have to just call it dot reshape.
लेट्स सपोज मैंने कहा 6:7। अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, ओके मैंने 6:7 तो कहा, इसका मतलब क्या है, देयर 6 रोज एंड 7 कॉलम्स। सिंपल। 6 रोज का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी फर्स्ट रो में मेरे पास 7, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन दिस इज 0 रो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 अगेन 7 अगेन 7 अगेन 7 अगेन 7, यानी 6 into 7 का कॉम्बिनेशन कितना हुआ, सेट ऑफ एलिमेंट्स मुझे चाहिए 42, बट इन दिस पर्टिकुलर कोड मैंने कितना दिया 20, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, मुझे एक एरर देगा। ठीक है, तो देखते हैं वो एरर क्या है। मैंने कहा ओके ये क्रिएट करो, ये कह रहा है कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 इनटू शेप 6:7। इस एरर को नोट डाउन कर लो या कुछ भी करो, ये एरर आपको एक्चुअल जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे आप, व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग ऑन द डेटा फ्रेम, देन यू विल सी दैट एरर मैनी टाइम्स। लिटरली आपको बहुत बार ये एरर मिलने वाला है, दैट यू कैन नॉट रीशेप योर एरे। ठीक है, इस तरह ये बोलेगा आपसे, काफी बार बोलेगा। तो अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। मीन्स इज दैट जो आप डेटा फ्रेम दे रहे हो, स्पेशली डीप लर्निंग में ये बहुत बार आता है, क्योंकि वी हैव टू डिफाइंड आर लेयर्स। हमें वहां पे क्या करना होता है, क्योंकि हमें उसकी वेटेज वैल्यू न्यूरल नेटवर्क्स की फीचर्स के अकॉर्डिंग देनी होती है। लेट्स सपोज मेरे 100 फीचर्स हैं, तो आई हैव टू गिव दैट इनपुट लेयर विद रिस्पेक्टिव टू द फीचर्स। तो हिडन लेयर पे मैं जब दूंगा उसे, तो ये एरर मुझे बहुत बार आएगा। तो यू हैव टू, अगर आपको वो एरर पता है, देन यू कैन जस्ट सॉर्ट योर एरे, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप क्या कर रहे हो, किसी ऐसे डेटा पे वर्क कर रहे हो जो पॉसिबल नहीं है। यानी आपने कहा कि मुझे 6 रोज और 7 कॉलम्स चाहिए, बट वो कह रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज तो है ही नहीं, क्योंकि साइज ऑफ 20 शेप 6:7, जो आपने एरे का साइज दे रहे हो 20 एलिमेंट्स का, वो 6:7 में रीशेप नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ओके, तो इसे फिर क्या करो, 42 एलिमेंट चाहिए, यानी 6 × 7, कितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए, देन आपके पास वो एलिमेंट्स आ गए। गॉट इट? समझ में आया व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीशेप एवरीवन? सर फिर से सर रीशेप। ओके ओके, म्यूट करो। सो लेट्स सपोज मैंने कहा np.arange, ये क्या करेगा 10, ठीक है, सिंपल। अब मैंने इसे 10 दिया, तो ये सिंपल क्या कर रहा है, वैल्यूज को क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने कहा ओके वैल्यूज को क्रिएट करो, कितने सेट पे क्रिएट करो, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, इसने ये वैल्यूज क्रिएट करी। कैसे क्रिएट करी, एरे के फॉर्म में, विच इज ऑफ 1 डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। इट्स सिंपल। मैंने अब अपने पाइथन से कहा नहीं, मुझे क्या करना है पाइथन, इसे आप कन्वर्ट करो किसी शेप में। शेप मीन्स इधर 2D में, विच इज 2D। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, शेप 2D है। 2D मीन्स इज दैट देयर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मैंने कहा इसे 2D में क्रिएट कर दो पाइथन, तो वो क्या करेगा, ठीक है वो क्रिएट कर देगा। अब जब आपने उसे ये कहा डॉट रीशेप, रीशेप इज योर फंक्शन विच हेल्प्स टू कन्वर्ट योर डेटा इनटू हायर डायमेंशन। ठीक है, हायर डायमेंशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप 3 डायमेंशन में भी जा सकते हो, 4 डायमेंशन में भी जा सकते हो। लेट्स से अभी मैं शो करूंगा आपको, वेट, आप हायर डायमेंशंस में भी वहां जा सकते हो। वेट 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 वेट, ठीक है तो आप हायर डायमेंशंस में भी जा सकते हो, बट अभी हम 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा देयर 10 सेट ऑफ वैल्यूज कन्वर्ट इनटू हायर डायमेंशन। अब हायर डायमेंशन आपके पास 10 वैल्यूज हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसके क्या क्या मेरे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आपने कहा 2:5 हो सकता है। 2:5 मीन्स दैट 2 रोज 5 कॉलम्स, या 5:2 हो सकता है, यानी जो वैल्यूज दे रहे हो वो रीशेप उसी की मल्टीपल होनी चाहिए। 5:2 हो सकता है, ठीक है, यानी 5 रोज 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। 10:1 हो सकता है डेफिनेटली, या फिर क्या हो सकता है 1:10 हो सकता है। अब 10:1 यानी 10 रोज 1 कॉलम, 1:10 मीन्स दैट 1 रो 10 कॉलम, जो सिंपल ये भी है। ठीक है, तो ये किस पे, रीशेप पे वर्क कर रहा है। तो मैं आपको शो कर देता हूं, देयर इज अ सटल डिफरेंस। और डिफरेंस क्या है, लेट्स सपोज देयर इज अ 10
मैंने रीशेप नहीं दिया उसे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने रीशेप दिया, एरे पे ध्यान रखना, जो एक्स एरे है विच इज ऑफ 1 डिमेंशन, मैंने कहा इसे आप क्या करो 1:10 में कन्वर्ट करो। देख रहे हो उसका डिमेंशन क्या चला गया, विच इज ऑफ सेकंड डिमेंशन। क्यों? क्योंकि आपने उसे सेकंड डिमेंशन में दे दिया। अब लेट्स सपोज आपने कहा ओके मैं इसे और भी हायर डिमेंशन दे सकता हूं क्या, देन यू कैन सी दिस इज ऑफ हायर डिमेंशन विच इज इन 3D। तो दैट्स लेट्स सपोज आपने कहा कि मैं इसे और भी हायर डिमेंशन में दे सकता हूं क्या, हायर डिमेंशन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि मैं 4 डिमेंशन को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो देन आई कैन शो दीज थिंग्स ऑन 3D प्लेन। तो ये क्या है, अगर आप देख पा रहे हो इसे इन दिस वे, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे मेरे पास एक डिमेंशन है, देन सेकंड डिमेंशन, then this one second dimension, second dimension, second dimension, second dimension, which is very very important, and second dimension and 2 dimension मेरी कहाँ पे है, बाहर है। तो मीन्स दैट ये किस तरह वर्क कर रहा है, अगर मैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दूं, दिस इज द वे, ठीक है। बट ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद 1 है, ठीक है, इन दिस वे, और ये ऐसे करता हुआ गया, यानी ये किस तरह, लेट्स सपोज देयर इज अ बुक, this is just, you can understand, this is just a book and there's a page behind it, ये इस तरह है, और ये इसकी जो फ्रंट पेज पे है, तो आप समझ सकते हो विच इज 0, ये इस तरह वर्क करे, देयर इज अ 0 1 2 3, यानी विद द पेज देयर इज अ 1, देयर इज अ 0, देयर इज अ 1, देयर इज अ 2, देयर इज अ 3, देयर इज अ 4, क्योंकि वो 2D डिमेंशन में है। देन टर्न योर पेज अगेन, turn your page again, you get a value, turn your page, get a value, turn your page, get a value, and then there is a 9 and there is a last page, just close your book। यानी आपके पास एक बुक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि इसे मत समझना कि 4D है तो जो बुक है वो ही है, बट मैं आपको 3D में एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन सर्व कर रहा हूँ क्रिएट करने का, जो आप 3D में सोच सकते हो कि एक बुक है, ठीक है, बुक इज इन 3D, और बुक के ऊपर एक एनग्रेविंग है, एनग्रेव हो रहा है, यानी मीन्स दैट कि एक जो 1 है वो विच इज ऑल्सो इन 3D, ठीक है, 0 है विच इज ऑल्सो, यानी जो बुक का पेज है उसमें जो लेटर्स हैं वो भी कैसे हैं, एनग्रेव्ड हैं, तो वो विच इज ऑल्सो इन द 3D वे। तो आप टर्न किया पेज, फिर देन नेक्स्ट लेटर आपको मिला, फिर टर्न किया नेक्स्ट मिला, और कहां तक मिला, 9 तक मिला आपको। गॉट इट? सो दिस इज जस्ट अ वे कि आप उसको कितनी भी डिमेंशन में दे सकते हो। गॉट इट? अब समझ में आया? तो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट द मल्टीपल। यस सर। ठीक है, तो नाउ कम टू द पार्ट मैट्रिक्स क्रिएशन। हमने देखा था np.mat के थ्रू हम कर सकते हैं क्या, और भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्या। मैट्रिक्स क्रिएशन मींस देयर इज अ 2D डिमेंशन, देयर आर सम रोज, देयर आर सम कॉलम्स, ठीक है, सिंपल। सो मैंने कहा np.0 4:5, 4:5 मींस दैट देयर 4 रोज एंड 5 कॉलम्स का 0, यानी 0 का मैट्रिक्स क्रिएट कर दो, सिंपल। और आपको पता है मैट्रिक्स इज अ सबसेट ऑफ एन एरे, सो दैट्स आई कॉल इट एज मैट्रिक्स क्रिएशन, ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, इफ यू जस्ट कॉल इट मैट्रिक्स है और एक एरे है, एंड देन यू आर जस्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन टू द पाइथन, क्या ए इज बी, डेफिनेटली फॉल्स कहेगा वो, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स इज डिफरेंट, एरे इज डिफरेंट फॉर द पाइथन, बट मैट्रिक्स इज अ सबसेट ऑफ एन एरे। So let's suppose there is a code which is as an array, definitely it will show some kind of boolean value true. So there is some another thing क्या subset, no need to go for that depth, जो important है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। Similarly आपने कहा वंस, यानी मुझे वंस का मैट्रिक्स क्रिएट करना है सब 2 डिमेंशन, और यू कैन से एरे आल्सो, ठीक है, एरे क्रिएट कर रहा हूँ मैं कितने डिमेंशन का, 10 रोज एंड 8 कॉलम्स का, सिंपल 10 रोज 8 कॉलम्स का मैंने क्रिएट किया, जीरोस वंस, देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई, आप स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा ओके मुझे क्या करना है,
3:5 का क्रिएट करना है विच इज ऑफ वंस, यानी वंस मीन्स दैट 1 1 1 1। अब यहाँ पे मैंने जो डिमेंशन दी है वो कैसी डिमेंशन दी है, 3D डिमेंशन दी है, यानी 3:5 का मुझे क्रिएट करना है विच इज ऑफ, जब भी आप क्या करोगे डिमेंशन दोगे 3 5 3, जब तक आप 2D दे रहे हो विच इज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इट्स सिंपल। जब आप ऐसे कर रहे हो तो देयर इज अ रोज एंड कॉलम, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 3D डिमेंशन दिया तो ये क्या करेगा, इट्स काइंड ऑफ 3D वे में ले जाएगा कि मुझे क्या करना है, इसे 3 डिमेंशन में कन्वर्ट करना है, यानी 3 डिमेंशन मीन्स 1 2 एंड 3, 5:3 की रोज एंड कॉलम्स, और इसे 3 डिमेंशन यानी देयर इज अ 1 पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज। फर्स्ट पेज पे प्रिंट हुआ विच इज 5:3, सेकंड पेज पे प्रिंट हुआ 5:3 एंड थर्ड पेज भी प्रिंट हुआ 5:3। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप इस मैट्रिक्स में जाओगे डिमेंशन, ये थर्ड डिमेंशन है विच इज ऑफ जेड एक्सिस, 5 is your x axis or you can say row and 3 is your y axis, you can say the columns, got it। तो ये ध्यान रखना, maybe it's kind of very kind of I can say confusion होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आप फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो विच इज ऑफ 3D नेचर, वो कैसा वैल्यू वहां पे क्रिएट कर रहा है विच इज ऑफ 3D डिमेंशन। तो वहां पे अगर आप देखोगे देयर इज अ कोड, यहाँ पे उसने क्या किया, 1 1 का मैट्रिक्स बनाया, कितना 5:3 का, और कितनी बार बनाया 3 टाइम्स विच इज ऑफ 3D डिमेंशन। ठीक है, सो लेट्स सपोज आपने कहा 4, तो देयर आर 4 पेजेस 3D। ठीक है, तो ये अभी क्या है 3D डिमेंशन की, यानी मुझे कितने पेजेस चाहिए 3 डिमेंशन के। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कहा देयर इज अनदर डिमेंशन, तो वो उसके अकॉर्डिंग अनदर डिमेंशन में वर्क करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो देयर इज 1 2 3 4, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग 4 डिमेंशन में उसको ले जाएगा। बट 3 डिमेंशन मीन्स दैट कि मेरे पास 4 है विच इज ऑफ जेड एक्सिस, और कितने उसके डिमेंशंस यानी कितने पेजेस चाहिए उस 3 एक्सिस के, क्योंकि एक्स वाई जेड है। अगर मैंने 1 यहाँ पे कॉमा लिख दिया तो यानी मैं 4 डिमेंशन में वर्क कर रहा हूँ, मैंने एक और 1 लिख दिया तो एक और हायर डिमेंशन में वर्क कर रहा हूँ। तो 2D में अगर आप वर्क कर रहे हो तो फर्स्ट जो आप वैल्यू दे रहे हो विच इज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर आप 3D पे वर्क कर रहे हो तो मीन्स दैट जो आप फर्स्ट नोटेशन दे रहे हो विच रिप्रेजेंट्स योर जेड एक्सिस एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर नंबर ऑफ पेजेस ऑल्सो, अगर आपको वो इमेजिन करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो मेरे से। सर अच्छा सर, वो जैसे 1 4 और 5 3 लिखे या फिर 4 5 4 लिखे तो दोनों में डिफरेंस आएगा सर? 1 4 5 3 लिखोगे तो ये किस डिमेंशन में दे रहे हो आप डेटा? सर 4 डायमेंशन। 4 डिमेंशन, और 4 डिमेंशन मीन्स दैट आप क्या कर रहे हो कि देयर इज अनदर डिमेंशन, उसका कितना पेज चाहिए विच इज ऑफ 1 पेज चाहिए। 3 डिमेंशन में मुझे कितने पेजेस चाहिए, 4 पेजेस चाहिए, और कैसे चाहिए 5 रोज होनी चाहिए एंड 3 कॉलम्स होनी चाहिए। गॉट इट। और अगर आप यहाँ पे 1 हटा दे रहे हो तो मीन्स दैट आप 3 डिमेंशन में वर्क कर रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये अभी ये किस में है 3 डिमेंशन, मैंने यहाँ पे 1 दिया तो यानी मीन्स दैट ये 5 रोज 3 कॉलम फर्स्ट पेज पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझो बुक है, आप फर्स्ट पेज पे प्रिंट कर रहे हो। मैंने कहा 2 अगेन 3 डिमेंशन है डेटा, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पे प्रिंट करो, यानी नंबर ऑफ पेजेस आपको जेड एक्सिस पे कितने चाहिए 2, मैंने कहा 3, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहिए 3। अब मैंने कहा कि यहाँ पे क्या करूं, मुझे एक और हायर डिमेंशन चाहिए, यानी 1 3 5 3 का, यानी देयर इज अनदर डिमेंशन इज इन 4 एक्सिस। तो 1 2 3 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह आपने कहा मुझे 2, तो देयर इज अनदर एक्सिस व्हिच इज रिप्रेजेंट ऑफ 4 डिमेंशन। गॉट इट। तो ये क्या कर रहा है आपको, उसने एक आपको 4 डिमेंशन में एक जो मैट्रिक्स है उसको इंक्लूड कर दिया। देन आपने कहा 3, तो उसके सक्सेसफुली वो वर्क कर रहा है। अब हम इसे रिप्रेजेंट, यानी मैं इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, आप बस इसे ऐसा समझ सकते हो, एक बुक है, बुक में फ्रंट पेज है, आपको 3 पेज प्रिंट करने हैं। अब वो 3 पेज में भी आपको 3 बार एनग्रेविंग करनी है। गॉट इट। यानी जो लेटर्स हैं वो अब 2D डिमेंशन में नहीं रहे, वो लेटर्स भी खुद एनग्रेव्ड हो चुके हैं। तो इस तरह आप सोच सकते हो
दिस इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मुझे नहीं पता कि 4D डिमेंशन को मैं कैसे शो करूंगा या इमेजिन करूंगा, बट इमेजिन मीन्स दैट कि मैं इस तरह इमेजिन कर सकता हूं बट आपको शो नहीं कर सकता। गॉट इट सिंपली। तो दिस इज द वे कि हम उसे समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 डिमेंशन है, 4 डिमेंशन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसे जो मैंने अभी तक प्रिंट किया विच इज 5:3 3 पेजेस पे, उसे भी मैंने 3 टाइम्स क्या कर दिया, एनग्रेव्ड कर दिया, अनदर डिमेंशन दे दी। ऐसी कुछ होती होगी, पता नहीं मुझे, मैंने वर्क नहीं किया कभी 4 डिमेंशन में, आपने किया हो किसी ने तो बताओ। गॉट इट, समझ में आया? तो 3 डिमेंशन इज गुड जिस पे वर्क करना होता है। सिंपली देयर इज आई, यानी मुझे आइडेंटिटी, अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो देयर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यू कैन जस्ट क्रिएट बाय द हेल्प ऑफ आई। तो np.i यानी 2, मुझे कितना चाहिए 2, लेट सपोज आपने कहा 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो यू कैन डू इट दिस थिंग्स आल्सो। क्या मैंने कहा ठीक है, जीरोस बनाना है, वंस बनाना है, आई बनाना है, तो यू कैन जस्ट डू दीज थिंग्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सिंपली देयर इज अ वे, डायगोनल पे मुझे वर्क करना है, तो मैंने कहा ए रेंज 25 वैल्यू लो, ठीक है, सिंपल, और उसे रीशेप करो। तो आपको पता है वो रीशेप यानी मीन्स दैट 5:5 में मैं उसे रीशेप कर रहा हूँ, 5:5 में उसने रीशेप कर दिया आपको, ठीक है। अब मुझे इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए, तो np डॉट बाय हेल्प ऑफ डायग एक्स, देयर इज अ फंक्शन के डायगोनल चाहिए। डायगोनल मींस दैट 0 6 12 18 24 दीस आर द डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं उसके डायगोनल्स भी ले सकता हूँ। गॉट इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि मैंने उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्रिएट किए। अब आपने कहा कि मुझे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का ही मैट्रिक्स क्रिएट करना है, और यू कैन से सेकंड डिमेंशन एरे क्रिएट करना है। तो बाय द हेल्प ऑफ np डॉट डायग एक्स, यानी आपने यहाँ पे क्या किया, उसे एलिमेंट्स दे दिए 0 6 12 18 24, सिंपल यही तो किया है आपने, वो एलिमेंट्स दे दिए और आपने कहा कि मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स बना दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आपने क्या किया, np डॉट डायग, लेट सपोज ये किया, और इसके अंदर क्या किया 1 2 3 4 5 6, ये किया आपने, ठीक है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, यानी जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसी की एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मींस दैट देयर इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose rank is 4:4, not rank, I can say the dimension, क्योंकि रैंक कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, ठीक है, which is depend on the determinant। तो मैं उसके क्या कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 which is 6:6। तो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास जितने होंगे उतने ही रोस होंगे, उतने ही कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या किया, इसके पहले डायगोनल्स निकाले इसकी हेल्प से, और यहाँ पे यही np डॉट डायग एक्स कर दिया, तो वो मुझे उसने क्या किया, उसका मैट्रिक्स दे दिया, और आई कैन से एरे दे दिया, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ वे। सिमिलरली अगर मुझे क्या फ्लैटेंड अपना मैट्रिक्स क्रिएट करना है, तो आई कैन डू माय फ्लैटेंड मैट्रिक्स आल्सो, कि मेरे पास नेस्टेड पार्ट है, तो आई कैन डू 1 2 10 एंड 3 4 10। तो इस तरह से मैं उसे फ्लैट भी कर सकता हूँ, यानी आपके पास अगर 1 2 3 4 5 6 इन स्ट्रक्चर है और नेस्टेड नहीं है, तो सिंपली np डॉट डायग, अगर आपके पास नेस्टेड है तो डायग फ्लैट, यू कैन यूज दैट फंक्शन आल्सो, ठीक है। इट्स सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, एंड यू डू प्रैक्टिस। Now come to the part which is very very important, which is random number generation. Why it is important? Because especially in the deep learning, जब भी आप जाओगे, ठीक है, कहीं भी, it's really very important, क्योंकि आपको अगर लेट सपोज किसी पे टेस्टिंग करना है, then you just start to create random numbers। तो आपने एक रैंडम नंबर्स क्रिएट करे और उसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो डेटा को। तो कैसे क्रिएट करेंगे रैंडम नंबर? अब यहाँ पे दो which is very very important, there is a uniform distribution and there is a normal distribution। किसी को पता है what is the difference between normal distribution and uniform distribution? Anyone? Normal distribution is mean equal to mode equal to median. Okay. Sir, mean near equal to mode equal nearly equal to median. It's called as the normal distribution, sir. Okay. 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 And, uniform distribution means all are uniformly distributed, like that type of sir. Like? मीन जितना रहेगा मीडियन उतना रहेगा एंड मोड भी उतना रहेगा सर। अगर एक सीरीज ऑफ नंबर आप ले रहे हो तो उनका जो मीन मीडियन मोड पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, एनीवन और कोई?
what is the difference between normal distribution and uniform distribution? Definitely we will learn these things in statistic part, but difference किसी को पता है क्या होता है? पढ़ा तो होगा सबने. Anyone? नहीं पढ़ा किसी ने? What is the difference between? अच्छा normal distribution क्या होता है? चलो ये बताओ. ये normal distribution तो पढ़ा ही होगा सबने. क्या होता है normal distribution? And there is a term another, maybe Gaussian distribution. किसी ने पढ़ा हो? Yes sir, Gaussian distribution मैं पढ़ा हूँ सर, but I am not recollecting sir. Okay. याद है सर, that name I recognize sir. Okay. Anyone? और कोई? सर Maybe. आई गेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स डेटा जो है सर वो सिंपली मतलब हमको मतलब रोज और कॉलम में दिया जाए तो ऐसा कुछ. Okay. Okay. Let's see. और कोई? Normal और किसी को? distribution in which mean equals to median equals to mode, which is actually there is no skewness in that particular distribution. Okay. अच्छा, I'm talking about density, तो फिर कैसे बोलोगे? I don't know about it. Density, maybe. You can say, okay, normal distribution means that mean equals to mode equals to median. But what is the significance? What is the significance of that distribution in terms of density? Normal distribution also known as, great Sanjay, good, very good. Normal distribution, the probability cluster around the mean is uniform, each element has equal probability. Okay, great, it's a technical definition. Good Kanika. अगर मैं let's suppose अगर मुझे समझना है in terms of I'm talking about the density of my values, तो how to do it, यानी फिर मैं क्या समझूंगा उसे? समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? नहीं समझ में आ रहा? So normal distribution में most of the values are concentrated in the middle, like, but Okay. then there are outliers. So In इसलिए normal हाँ, distribution में okay, there are some outliers. Okay, let's see. bell shaped curve होता है, तो most of the values fall in the middle around Okay. the mean. And what about uniform? Uniform distribution में sir, like on a graph it's a flat line, मतलब कि every value has equal probability of happening. Okay, great. Anyone? और कोई और मुझे देगा डेफिनेशन? कुछ और जो आपके दिमाग में आ रहा हो बताओ, कुछ और? Anyone? Okay, let's see. जैसे थोड़ा सा समझते हैं पहले, ठीक है? तो मैं डेफिनेशन जाने से पहले यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ. लेट्स सपोज मैंने एक कोड दिया कोई भी रैंडम नंबर्स का, मैंने यहाँ पे रैन लिखा है, ठीक है, विच इज 10:4. सिंपल. मैं जब इसे 10:4 लिख रहा हूँ, हमेशा देखना देयर इज सब पॉजिटिव वैल्यूज. I call it again, there is a positive values. Call it again, there is a values which is lies between 0 to 1. यानी अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता हूं तो वो कहाँ पे वर्क करता है? देयर इज अ रेंज व्हिच इज लाइज बिटवीन 0 to 1. सेम केस अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने सिंपल बस चेंज किया, देयर इज अ एन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ये मुझे जो वैल्यूज दे रहा है व्हिच इज ऑफ नेगेटिव, यानी ये कुछ वैल्यूज दे रहा है मुझे, और ये वैल्यूज मुझे कहाँ से कहाँ तक रेंज दे रहा है? -3 to 3 की रेंज में. So there is a very I can say big difference between uniform distribution and normal distribution. Stat में हम इसे deeply पढ़ेंगे. There is a there is a uniform distribution. ये क्या है? आपका uniform distribution which is lies between 0 to 1. और you can say there is a frequency also, ठीक है, there is a frequency which is lies in the way you can say, क्योंकि वो उसका जो वैल्यू है वो 0 to 1 में ही लाई करेगा हमेशा, ठीक है. And let's suppose there is a normal distribution, means that there is a value which is lies between -3 to 3, and this is the curve जो कैसे है? मेरा एक पीक मुझे दे रहा है.
ये क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, नो नीड टू वरी, वी विल डू इन द स्टेट पार्ट। बट यहाँ पे जो मैथमेटिकल डेंसिटी है वो समझना है। अगर मैं ऐसे सिंपल रेंट वैल्यूज दे रहा हूँ, इट मींस आई एम कॉलिंग फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मुझे वैल्यूज चाहिए, वो कहाँ पे चाहिए, 0 to 1 के बीच में वैल्यूज चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन इज बिहाइंड दैट, क्योंकि आपको अगर अपने नेटवर्क्स पे जो वेटेज वैल्यू देना है वो अगर 0 to 1 के बीच में देना है, दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह देना है विच इज लाइज बिटवीन -3 to 3, तो देन यू कैन कॉल इट रेंट एंड। अब ये क्यों होता है 0 to 1, नो नीड टू वरी, वी विल डू दीज थिंग्स इन स्टैटिस्टिक कंप्रेहेंसिवली, ठीक है, नो नीड टू वरी। ये क्यों होता है, क्या होता है, तो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो वहां फिर समझ में नहीं आएगा मे बी, ठीक है। ये क्यों होता है वो हम वहां देखेंगे, व्हाट इज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर दीज टर्म, व्हाट इज द मिन मैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, द लॉट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक it's just kind of ocean also. If you go into the deep dive, there is no such, maybe I can say there is no depth. So यहाँ पे हमें ये समझना है कि numpy के, अगर numpy के बेसिस पे देख रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो if I'm creating random values, कितना 10:4 represent their shape. Shape means that आप उसका shape कितना देना चाह रहे हो, 10 रो 4 कॉलम्स में देना चाह रहा हूँ, और कैसे देना चाह रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या था, हमने रैंडम एक लाइब्रेरी पे वर्क किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैंने इंपोर्ट किया किसे, रैंडम को, ठीक है। तो रैंडम के अंदर हमने देखा था रैंडम डॉट रैंडम, वो रैंडम नंबर मुझे दे देता था फ्लोट वैल्यू। मैंने कहा रैंडम इंट, तो वो मुझे इंट वैल्यू देता था। सिमिलरली नमपाई के अंदर भी लाइब्रेरी है और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है, देयर इज अ रैंडम, तो मैं उसे सिंपल कॉल कर सकता हूँ। कैसे कॉल कर सकता हूँ, आपने कहा ओके सिंपल, मेरे पास क्या है, रैंडम। आपने कहा इंपोर्ट नमपाई, तो ये क्या है, नमपाई के अंदर इटसेल्फ है, तो देयर इज नो नीड टू क्या रैंडम उसे स्पेशली कॉल किया जाए। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपने कहा np.random। अब रैंडम के अंदर मुझे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, आपको फिर बताना पड़ेगा। तो आपने कहा मुझे रैंड डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, नहीं रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो पाइथन अपने आप ही समझ जाएगा ओके यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने कहा सिंपली np.random.rand 10:4, 10:4। आपने कहा नहीं मुझे 10:4 का नहीं चाहिए, मुझे 5:5 का चाहिए, और मे बी 5:5, तो 5:5 का वो डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। पर डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में। बट नाउ आपने कहा मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है एंड मीन 0 है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कैसे होता है, कहाँ से होता है, नो नीड टू वरी, देयर इज अ फॉर्मूला, वी विल डू लेटर, ठीक है। तो देखेंगे देयर इज अ z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वी विल डू, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक में जाएंगे वहां हमें समझ में आएगा ओके देयर इज अ सैंपल, देयर इज अ पॉपुलेशन, देयर इज अ बेसल करेक्शन, वी हैव टू डील दीस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डेटा। if you are just working on the sample, then you have to deal with the Bassel's correction also. If you just dealing with the population, no need to worry about these things. तो वो हम वहां पे जाएंगे, we will do some tests, we will perform some tests, then we can understand what is the difference between these sums. तो इसलिए अभी वहां पे हमें बस मैथमेटिकली समझना है कि अगर मैं रैंड की बात कर रहा हूँ तो मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यूज ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन 0 to 1। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट मुझे -3 से 3 के बीच में वैल्यूज चाहिए। गॉट इट, इट्स सिंपल डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ पर एंड किया, तो ये मुझे क्या करेगा, 5:5 का डेटा दे देगा विच इज लाइज बिटवीन -3 to 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आपका वैल्यू आ जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस वन। अब लेट्स सपोज आपने कहा मुझे इंटीजर वैल्यूज चाहिए, तो यू कैन गेट द इंटीजर वैल्यूज आल्सो 5। अच्छा कोई सर, भी, उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे तो सेम वैल्यूज आएंगी कि नो डिफरेंट वैल्यूज आ हर जाएंगी? बार डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, हर ओके बार। सर, ओके। इट इज रैंडमली मींस दैट आप रैंडमली नंबर दे रहे हो। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द डे प्लानिंग, क्योंकि आप एक रैंडम वेटेज दे रहे हो। वेट मतलब हर बार आप जब अलग अलग वेटेज दोगे तो आप हर बार न्यूरल्स को चेक कर सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। तो जब भी आप उसे रिफ्रेश करोगे मींस शिफ्ट टैप करोगे तो आपके पास अलग वैल्यू आएगा। अब देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू द रैंडम डॉट सीड। रैंडम डॉट सीड क्या करेगा, उसे वहां पे फिक्स कर देता है। लेट्स सपोज आई एम जस्ट शोइंग, तो आपने कहा np.random.seed,
तो ये क्या करेगा, आपने कहा कि मुझे 10 पे सीड करना है, तो दिस इज अनदर वे, वी विल जस्ट सी दीज थिंग्स इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर आल्सो। तो वो क्या करेगा, हर बार आपको सीड करता जाएगा, यानी आपने एक वैल्यू सीडिंग कर दिया कि मुझे, अगर आप ये 10 वैल्यू कॉल करते हो रैंडम डॉट सीड और मैं भी वही वैल्यू कॉल करता हूँ, तो हर बार हम दोनों को सेम वैल्यूज मिलेगी। सो दैट्स अनदर वे। क्या हम लोग सीडिंग करते हैं नहीं करते हैं, डिपेंड्स ऑन द आई कैन से नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे सीडिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि मैं जब भी इसे डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ तो वो हर बार न्यूरल नेटवर्क्स पे अलग वेटेज दे रहा है, बट आपने कहा कि नहीं, मुझे वही वेटेज पे वर्क करना है जो आपने जिस वेटेज पे न्यूरल्स को दिए, तो हम लोग सीडिंग कर देते हैं। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट उसे बाद में देखेंगे, ठीक, इट्स अ डिफरेंट वन। देन random dot rand n means मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ। सिमिलरली मैंने कहा इंटीजर वैल्यूज क्रिएट करनी है मुझे। अब इंटीजर वैल्यूज कैसे क्रिएट करनी है, 1 to 20 के अंदर मुझे 12 वैल्यूज क्रिएट करनी है। ठीक है, दिस इज द वे कि मुझे 12 वैल्यूज क्रिएट करनी है। अब आपने कहा कि मुझे उसे 2D में चाहिए मैट्रिक्स में, तो देन random dot rand int 1 to 100 4:5। यस प्लीज। हेलो सर, स्वाधीन बोल रहा हूँ सर। यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट वैल्यू 0 to 1, इट इज द p वैल्यू यू आर टॉकिंग अबाउट सर on that? Do you know what is p value? Yes sir, yes sir, in Yes, hypothesis like probability value to reject the null hypothesis. Who said? Like it's called as the null hypothesis, na sir? Who said to you? It is a probability value which is responsible for these things. Who said to you? Let's suppose I am working on 0.1 No sir, p value. I am actually saying sir, p value it stands from 0 to 1. It is the correct one, sir? Who said these things? That's why I'm asking to you. Who said? Where you have to read these things? एक्चुअली सर मैं जो पहले क्लास करता था सर, तो मुझे Maybe पता चला if you are just taking the different class, so definitely it's a different thing. P value depends on the confidence interval. These things are Okay, not sir. important Okay, sir. here. I'm just working on the numpy, means that we are here for the numerical calculations. When we go in the statistic, then we will see each and everything. P value is directly related with the confidence interval. If you are working with the 90% confidence interval, working with the 99, let's suppose you are working in the healthcare industry, then you have to work with the 99.99 percentile, then in the p value which is related to the 0.001. So it is not kind of thing you are just working on the hypothesis on the p value which is 0.5. It is not mandatory. It bases on the domain expertise. If you are working on the maybe airline industry, healthcare industry, where you have to work beyond the 6 sigma, then definitely you have to choose that p value wisely. You can work with the 90%, which is 0.1 p value. You can work with the 0.1 value also. So we will do these things when we do statistic. Okay. So there is no relation here with the p value and these things. So उसे the reason is behind that आप फिर connect नहीं कर पाओगे. Maybe if I'm just merging statistic also merging no, these. Sir, no sir, no sir, no sir. Okay sir, I understand. So हाँ, तो रैंडम इंटीजर्स मुझे क्रिएट करने, मैंने कहा 1 to 100 में रैंडम इंटीजर्स क्रिएट करो। और कैसे करो, देयर इज अ शेप व्हिच इज 4:5। 4:5 मींस इज दैट देयर इज अ 20। 4:5 यानी 20 सेट ऑफ वैल्यू चाहिए मुझे। किस में से चाहिए, 1 से 100 में चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे क्रिएट कर सकता हूँ और हर बार आपको डिफरेंट मिलेगा। तो दैट्स व्हाई यू कैन जस्ट डू योर वर्क आल्सो। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट numpy.random. इम्पोर्ट। अब राइट सपोज आपने कहा कि मुझे हर बार ये लिखना पड़ता है np.random.randint, क्या ये मैं इसे किसी दूसरे वे से कर सकता हूँ? डेफिनेटली आप कर सकते हो। मैंने क्या कहा पाइथन से, जैसे हमने रैंडम में देखा था, ठीक है, इट्स सेम दैट। मैंने कहा numpy.random है, ठीक है, numpy के अंदर मेरे पास एक लाइब्रेरी है, सॉरी numpy इस लाइब्रेरी, और numpy के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑफ रैंडम, देयर इज अ क्लास। तो मैंने कहा उस पे जाओ, उसमें से इंपोर्ट करो रैंडम इंट को, और कैसे इंपोर्ट करो, आ रहा है। यानी अब हर बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा np.random.randint, ये नहीं लिखना पड़ेगा। और लेट्स सपोज अगर आपने फ्रॉम numpy ये भी नहीं किया, या इंपोर्ट numpy np भी नहीं किया, तो फिर तो आपको numpy.random.randint भी लिखना पड़ेगा। आपने कहा इंपोर्ट numpy सिंपल, तो np की जगह आपको numpy.random.randint लिखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इट्स अ रियली टीडियस थिंग। जब आप बार बार कोड कर रहे हो, बार बार क्रिएट कर रहे हो, तो आपने कहा numpy रैंडम में जाओ, वहां से इंपोर्ट करो रैंडम इन sri। sri मींस दैट देयर इज अ एलियास।
तो आप उसे एलियास यूज कर सकते हो। अब आपने कहा कि मुझे रैंडम एन करना है, तो आपने कहा numpy.random में जाओ, इंपोर्ट करो रेंट एन SRN, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर दे देगा। तो यू कैन मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू योर ओन ईज, जैसा आप चाहो उसे वैसा कर सकते हो। तो मैंने कहा ओके, ए आ रहा है 1 to 100 और मुझे कैसी कितनी चाहिए, 30 सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए, तो मुझे 1D एरे दे देगा। मैंने कहा उसे ए जो एरे आया है उसे रीशेप कर दो किसमें, 6:5, 6 रोज 5 कॉलम्स, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग मेरा डेटा दे देगा। तो A is 1D and C you can see 6:5, so you can just create your random distribution of data also, ठीक है। There is a A range, A रेंज में आप क्या कर रहे थे, यू जस्ट क्रिएटिंग योर डेटा अकॉर्डिंग टू द स्टेप साइज, ठीक है। आपने कहा कि मुझे स्टेप साइज के अकॉर्डिंग वैल्यूज चाहिए। देयर इज अ लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस क्या करता था, देयर इज अ वन वैल्यू एंड द आई कैन से देयर इज अ रेंज एंड बोथ द वैल्यूज इन द रेंज आर इंक्लूसिव, और उसके अंदर जो स्टेप साइज होता था वो यूनिफॉर्म होता था, ठीक है। फिर आए आप किस पे, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट लाइक दैट कि आप कोई भी रैंडम वैल्यूज को सिलेक्ट कर रहे हो, देयर इज नो सच थिंग क्या स्टेप साइज पे बेसिस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म स्टेप साइज होना चाहिए, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी रैंडम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी है, ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू कम्स इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम जनरेशन। तो आपने रैंडम नंबर्स को जनरेट किया, देन यू कैन डू इट आल्सो बाय द रैंडम int, बाय द रैंडम distribution, by the random normal distribution, ठीक है। तो this is simple thing you can do practice also. Now come to the part which is sorting. अब let's suppose मेरे पास एक अपना matrix है and I want to just do sorting also. So there is a kind means that there is a argument which is the merge sort. So there is a quick sort, there is a heap sort, there is a merge sort. There are lots of sorting are present, but merge sorting is the best for the array. So you can use the merge sort. Don't worry, when we go into the pandas, then we will see क्या हमें किस टाइप का sorting करना है। there is a quick sort also, heap sort also, there is a merge sort also, don't worry। but अभी there is for the numpy there is a merging sort, तो हम लोग क्या करें, इसकी sorting कर रहे हैं। अब sorting means that आप row wise कर सकते हो या फिर column wise कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा confusion होगा, ठीक है, उसे समझना, लेकिन axis 0 represent row, ठीक है, axis 1 represent is column, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये आपको रिप्रेजेंट ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा वर्क उसका अपोजिट कर रहा है। तो वेट, तो मैंने कहा क्या करो पाइथन, सॉर्टिंग करो, इसका सॉर्टिंग करो। लेट्स सपोज ये मेरा एम है, ठीक है, 88 78, मैंने कहा इसका सॉर्टिंग करो। अब मैंने जब इसका सॉर्टिंग किया तो देखो ये सॉर्टिंग कैसे कर रहा है, 31 56 70 79 88, ठीक है, ये सॉर्टिंग कर रहा है आपका इस तरह। ठीक है, मैंने अभी इसे कोई भी एक्सेस नहीं दी है। सेम मैंने कहा इस पे एक्सेस दे के देखते हैं, विच इज a इक्वल्स टू 0। लेट्स सी, मैंने इसे एक्सेस दिया a इक्वल्स टू 0। अभी किस तरह सॉर्टिंग कर रहे हैं, देखो, there's a wait, I'm just again calling this one, there's a sorting, ठीक है, और मैंने सॉर्टिंग किया मर्ज सॉर्ट इसे। अब देखो ये किस तरह सॉर्टिंग कर रहा है, एनीवन कोई बताएगा मुझे किस तरह सॉर्टिंग कर रहे हैं? सर कॉलम वाइज सॉर्टिंग। 0 axis. देखो किस तरह सॉर्टिंग कर रहा है। सर कॉलम वाइज सर, फर्स्ट कॉलम 75 78 82 एंड सेकंड 32 37 ऐसे से। समझ में आ रहा है? जबकि मैंने अभी तो बोला एक्सेस जो 0 है वो रो वाइज सॉर्टिंग करेगा। मैंने अभी भी बोला ना आपसे, क्या ये क्या करेगा, एक्सेस 0 मैं दे रहा हूं तो ये सॉर्टिंग कैसे करेगा, रो, मतलब सॉरी मेरी स्टेटमेंट के लिए, एक्सेस 0 का मतलब मैं रो वाइज सॉर्टिंग कराना चाहता हूँ। एक्सेस 0 का मतलब यही होता है कि आप वर्क कैसे करना चाह रहे हो, रो वाइज, ठीक है। बट ये मुझे शो कर रहा है कैसे, कॉलम वाइज। अब लेट्स सी, मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैंने एक्सेस 1 क्या बोला था आपसे, कॉलम, ठीक है, यानी मैं कॉलम वाइज वर्क करना चाहता हूं। अभी कैसे सॉर्टिंग कर रहा है, रो वाइज। रो वाइज। तो यानी अब इसका डेप्थ समझते हैं। मोस्टली आई एम सेइंग, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग, बट मोस्टली 95% लोग इसमें गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक्सेस 1 दे रहा हूं तो ये रो वाइज सॉर्टिंग करेगा,
और एक्सिस 0 दे रहा हूं तो कॉलम वाइज नहीं, ऐसा नहीं होता। डेप्थ में अगर आप जाओगे तो इसका एक कॉन्सेप्ट है विच इज अलोंग द एक्सिस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलोंग द एक्सिस मीन्स दैट देयर इज अ रो एंड मैं कैसे वर्क कर रहा हूं, इस तरह वर्क कर रहा हूं अलोंग द एक्सिस, यानी ये इस रो पे गया, इस पे वर्क किया, इस पे वर्क किया, इस पे वर्क किया, इस पे किया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे। ठीक है, ये आपको शो करेगा, मतलब इट इज जस्ट काइंड ऑफ, यू कैन सी देयर इज अ इल्यूजन कि आपको लग रहा है ये कॉलम वाइज हो रहा है, बट इट इज नॉट कॉलम वाइज, इट इज रो वाइज। ठीक है, इन डेप्थ इट इज अ रो वाइज। तो आपके अगर दिमाग में एक अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, मीन्स दैट व्हेन आई एम जस्ट गिविंग दैट डेटा एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो ये अलोंग द एक्सिस में मूव कर रहा हूं, आई एम जस्ट वर्किंग अलोंग द एक्सिस। और जब अलोंग द एक्सिस मूव करूंगा तो ये मुझे इस तरह शो करेगा। ठीक है, मे बी इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरव्यूअर ऑल्सो, अगर उसे ये नॉलेज है तो वो इसको समझेगा, बट आप अपना डेफिनेशन के संग स्ट्रिक्ट रहना। एक्सिस इक्वल्स टू 0 पे ये मत कह देना कि ये कॉलम वाइज सॉर्टिंग कर रहा है, नो, you have to say it is sorting along the axis. So axis equals to 0 means that I am working along the x axis. तो मैं along the x axis पे वर्क कर रहा हूँ। It can be fit in like क्या मैं कॉलम पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट एक्चुअली, इट इज एक्चुअली डूइंग देयर सॉर्टिंग along the axis of row। ठीक है, और यू कैन से कि एक्स एक्सिस के along वो सॉर्टिंग कर रहे हैं। तो इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, बट मे बी आपको अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो ये समझ सकते हो कि एक्सिस 1 एंड 0, क्योंकि जब हम डेटा फ्रेम में जाएंगे ना तो वहां पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 आपको रो वाइज दिखाई देगा और एक्सिस इक्वल्स टू 1 आपको कॉलम वाइज ही दिखाई देगा। बट इन द numpy मींस दैट स्पेशली इन द numpy के एक्सिस इक्वल्स टू 0 वो कॉलम वाइज दिखाई दे रहा है और एक्सिस इक्वल्स टू 1 वो रो वाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मे बी फॉर योर इंटरव्यू, स्पेशली फॉर इंटरव्यू, प्रैक्टिकल कोडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछने वाला ये सॉर्टिंग कैसे हो रही है। गॉट इट, ये समझ में आया? तो एक्सिस 1 मींस दैट वो डिफॉल्ट है और मैंने एक्सिस 0 उसे दिया, तो वो मतलब मैं उसे किस पे वर्क कर रहा हूँ, कॉलम वाइज वर्क कर रहा हूँ। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग माय सॉर्टिंग आल्सो, कि मैं किस तरह से सॉर्टिंग किस एक्सिस पे सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, यानी अलोंग द एक्सिस। अब मैंने कहा एक्सिस इक्वल्स टू 1, जो आपको रो दिखाई दे रहा है इधर, तो यानी दिस इज माय एक्सिस एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सिस। और यू कैन से क्या मैं अलोंग द दिस एक्सिस पे वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट सॉर्टिंग माय एलिमेंट परपेंडिकुलर टू माय given axis, you can say, क्योंकि axis equals to 1 is column and I am working on perpendicularly। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि I am working on the perpendicular or along the axis also। It's good thing is that you can say क्या मैं along the axis पे वर्क कर रहा हूँ, ये इस एक्सिस पे गया वर्क करेगा, इस एक्सिस पे गया वर्क करेगा, क्योंकि वहां पे जब जाओगे डेटा फ्रेम में एक्सिस इक्वल्स टू 1, यानी वो आपको बताएगा कि आप कॉलम वाइज ही वर्क कर रहे हो, वो शो भी करेगा। सो दैट्स वाई, ठीक है, उसे ध्यान रखना। अगेन नाउ कम टू द पार्ट, मेरे पास कोई डेटा मैंने क्रिएट किया और देन मैंने कहा ओके नेम, जो नेम है उसे U32, अब U32 का आपका नोटेशन पता है, ऐसा स्ट्रिंग डेटा टाइप, और आपने कहा कि मुझे 352 बिट साइज में चाहिए, हाइट इज फ्लोट, एज इज इंट। मैंने एक डेटा टाइप का दे दिया कि नेम मुझे जो चाहिए वो 32 स्ट्रिंग में चाहिए, हाइट शुड बी इन फ्लोट एंड एज शुड बी इन इंट। देन देयर वैल्यूज मैंने कहा ठीक है, वैल्यूज दिया मैंने, आर्थर, there's a name, height is 1.8 and age is 41, then Lancelot is 1.9 and 38, and then Galed is 1.7 and 38। सिंपल मैंने कुछ इस तरह का डेटा दिया, यानी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं अपने डेटा को मैपिंग करना चाह रहा हूँ जो हमने पहले देखा था। ठीक है, देयर इज अ ए, मैंने उसे डेटा टाइप दे दिया int i8, देयर इज अ बी फ्लोट i4। ठीक है, इस तरह से। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं डेटा कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, इन द सेम वे मैंने कहा एरे बनाओ वैल्यूज का, और जो डी टाइप है वो कहाँ से लो, वो यहाँ से इसे मैपिंग करके लो। ठीक है, आई एम जस्ट सिंपल क्रिएटिंग माय एरे। अब यहाँ पे क्या है, एरे है तो देयर इज अ टपल, इन द टपल आर्थर 1.8 41, तो ये क्या करेगा, आर्थर 1.8 41, देयर इज अ नेम, ठीक है, and height and there is a age and there is a second is Lancelot is
1.9 and 38 and Galib is 1.7 and 38। ठीक है, तो इस तरह मेरा डेटा, तो नेम मैपिंग हो गया। हमने यही देखा था कि वो कॉलम वाइज मैपिंग करता है, अगर आपको याद होगा, हाइट कॉलम वाइज मैपिंग, एज इज कॉलम वाइज। तो क्रिएट, अगर आप एरे क्रिएट कर रहे हो, देयर लॉट्स ऑफ वेज टू क्रिएट योर एरे। You can just manipulate according to the data type. You can do anything in the arrays. That's the beauty of the array. So मैंने इस डेटा को क्रिएट किया and wait, I just call it height. तो ये मुझे क्या कर रहा है, मेरे एक एरे दे रहा है। किस तरह दे रहा है कि एक आर्थर है, 1.8 है, 41 है, लैंसलेट है, लैंसलेट 1.9, 38, गैलेट 1.7, 38, ये मुझे अपना एक डेटा दे रहा है। अब लेट्स सी, मैंने कहा ओके, ये जो मुझे डेटा दे रहा है, इसने मुझे ये डेटा दे दिया, यानी आर्थर 1.8, 41, देन लैंसलेट इन दिस वे। ठीक है, तो मैंने कहा ओके दिस इज द डेटा। मे बी मैंने कहा ओके इसे क्या करो, रीशेप कर दो, और रीशेप मैंने कहा 3:3 में कर दो। लेट्स सी, मैंने कहा 3:3 में इसे रीशेप कर दो। ये मुझे क्या कह रहा है, cannot reshape size of 3 into shape 3:3। क्यों मुझे ये एरर दे रहा है, कोई बताएगा? सर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है सर, बट हम लोगों ने 3 into 3 मतलब 9 एलिमेंट्स दिए, तो नहीं हो पाएगा सर ऐसा रिलेशनशिप। मैंने तो 9 ही दिए। सर वो 9 से वो 1 टपल 2 सर 3। सर टपल्स तो 3 ही है ना सर, तो ओके, एलिमेंट तो 3 ही होंगे तो फिर मैं क्या करूं? सर। 1:3 या 3:1 ऐसा समथिंग। ओके, तो नहीं, अगर मुझे लेट सपोज मुझे तो इसी तरह चाहिए ना, नेम, हाइट एंड एज, एंड देयर इज अ नेम आर्थर, लैंसलेट, गैलेट, हाइट, दिस वन, मुझे तो इस तरह चाहिए। मेरे पास डेटा फ्रेम में आया तो मैं तो इसे इस तरह से एक 2 डायमेंशनल एरे में क्रिएट करना चाहता हूं, तो क्या करूं? 1:3 में तो वो मुझे दे ही रहा है, बट यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं, इस तरह से पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करूं? यस, समझ, क्वेश्चन समझ में आया मेरा? व्हाट्स द क्वेश्चन इज दिस? यस सर। मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास एक डेटा है, वो टपल में है, बट मैं तो ये चाह रहा हूँ कि वो इस तरह से शो करे मेरे डेटा को। शो क्यों नहीं कर रहा? एनीवन? एक्सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेट, गुड, ओके, बट करने का मैं, क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्या वो 3:3 में चाहिए मुझे? डेफिनेटली क्या वो एक टपल को क्रिएट कर रहा है, बट मुझे तो उसमें चाहिए डेटा, तो अब क्या करूं? सर अनपैकिंग कर सकते हैं टपल की, कैसे करूं? एस्ट्रिक्स वैल्यूज पर। क्या करूं बताओ मुझे, मुझे कोडिंग नहीं आता, मैं क्या करूं बताओ, कहाँ पे? सर np.arrays जब लिखा है आपने ये ध्यान रखना, अगर आप अनपैकिंग कर रहे हो तो मीन्स दैट देयर इज अ डेटा टाइप व्हिच रिलेटेड टू द ए बी सी। ठीक है, जो मैंने बताया था, नेम, हाइट, फ्लो, नेम, हाइट एंड एज, उसका डेटा स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए, सॉरी डेटा टाइप चेंज नहीं होना चाहिए, रिलेटेड वैल्यूज का, ये भी ध्यान रखना अगर आप अनपैकिंग कर रहे हो। क्या करूं आप? चलो इसे, इट्स योर असाइनमेंट, जस्ट यूज योर ब्रेन। ठीक है, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कैसे मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट है। सो लेट सपोज मैंने कहा ओके मेरा एक एरे था, दिस इज माय एरे, सिंपल, ओके, मैंने कहा सिंपल मेरा एक एरे है, मैंने उसे आर्थर, लैंसलेट इस तरह से लिया, और वो मुझे बोला ओके डेटा टाइप, मैंने जब उसे चेंज करने जा रहा हूँ तो वो मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है, विच इज 3:3। एंड लिटरली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में ये सबसे ज्यादा आता है, एंड 95% आपको ये प्रॉब्लम आएगा, दैट्स व्हाई मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। आपको डेटा एक मैं दूंगा विच इज रिलेटेड टू, आई थिंक जोमेटो का डेटा है, इट्स वेरी वेरी अनटाइडी, वेरी वेरी काइंड ऑफ आई कैन से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी उसके अंदर जो डेटा होगा ना,
एक ही फीचर के अंदर आपको बहुत सारे टपल्स दिए होंगे। मतलब एक फीचर, लेट सपोज क्यूजिन एक फीचर है। अब क्यूजिन यानी रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट, लेट सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट लिया उडीपी, ठीक है। अब उडीपी में बहुत सारी क्यूजिन्स हैं, ठीक है। अब वो जो डेटा दे रहा है वो ऐसा नहीं है कि उडीपी अलग है, देन यू उडीपी में ओके देयर इज अ इडली सांभर, देयर इज अ यू कैन से डोसा आल्सो, देयर इज अ उत्तम आल्सो, नो, उसने एक ही टपल में आपको डेटा दे दिया। अब इसे सॉर्ट कर दे रहा हो। सॉर्ट मीन्स इज दैट कि इसके फीचर्स बनाते रहो, और जब तक आप इस पे वर्क नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा, एक्चुअल डेटा होता क्या है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू योर ब्रेन स्टॉर्मिंग आल्सो। अब वहां पे अगर आपको डेटा दिया, आपने कहा मैं तो पीडी रीड सीएसवी पढ़ा है बस, और मैंने ये पढ़ा है कि अब इस पे मुझे, लेट्स सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ जो मैंने एक डेटा पे वर्क किया था, विच इज बेंगलुरु जोमेटो बेस्ड डेटा। देयर सम रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग ये डेटा इसने ओडीपी पे ने क्या किया, लेट्स सपोज देयर इज अ ओडीपी, ठीक है, एंड देयर इज अ A1, देयर आर 2 रेस्टोरेंट्स। अब ओडीपी के पास बहुत सारी क्यूजीन्स हैं, तो ओडीपी ने क्या किया, वो क्यूजीन्स का एक टपल बनाया, दैट्स साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, देयर इज अ इटालियन, इस टाइप का बनाया, और इसी के अंदर एक ही रो के अंदर वो सारा फीचर डाल दिया। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, देन A1 ने भी ये किया। अब आपको ये बताना है कि ओडीपी के पास कितनी क्यूजीन्स की वैरायटीज हैं, अब उसकी एनालिसिस कर लो। तो दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। आपको A1 पर बताना है कितना क्यूजीन्स है। अब आपको वो जो एनालिसिस करना है वो ये बताना है कि बेंगलुरु में कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो जोमेटो से कोलैबोरेट हैं, बट वो नॉर्थ इंडियन देते हैं। अब और नॉर्थ इंडियन में क्या क्या देते हैं, समझ सकते हो कि दिस काइंड ऑफ एनालिसिस यू हैव टू डू एज अ डेटा साइंटिस्ट। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास डेटा आया एंड देन डेटा पे मैंने एनालिसिस किया, फीचर पे वर्क किया एंड माय डेटा इज वेरी वेरी सॉर्टेड। नो, दैट्स नॉट रियल पिक्चर। डेटा ऐसा डेटा आता है कि आप खुद सोचोगे, जो अभी हम आगे वर्क करेंगे, ठीक है, पंडास के बाद एक देर सा लाइव प्रोजेक्ट ऑल्सो, वो डेटा जब आप, मैं उस पर वर्क कराऊंगा ना, तो आप खुद सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, क्या बिग बिलियन डे सेल हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, देयर इज अ रिटेल काइंड ऑफ सेल। तो बहुत ऐसा डेटा होता है, देयर इज अ मैसिव डेटा। अगर नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन फीचर्स आल्सो। अगर आपको नहीं पता फीचर्स कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप कभी डेटा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकते। डेटा साइंटिस्ट तो छोड़ो, आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। If you don't know how to create the feature from the given data, it's really very very important। क्या, इसलिए मैंने बोला है कि there is a thing which is really to the adaptability, कि आप अपनी चीजों को adaptable बनाओ। ऐसा नहीं है कि जो, हाँ, सर आई गेस सर वो सर रीशेप 3:1 से हो जाएगा सर। जो भी आपको करना है वो you have to do it by own, ठीक है। ओके सर, एक बार आप हाँ कर दीजिए कि रिजल्ट क्या रहा हो सकता है। There is a assignment, no you have to do by own, ठीक है, there is a assignment। बस ये ध्यान रखना कि मैं जो कह रहा हूँ कि there is a name, there is a height, there is a kind of age, you have to do by own, ठीक है, वो करो इसे। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। आगे आपके पास बहुत टफ डेटा आने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इट्स रियली वेरी स्मॉल थिंग। और उसका अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर उसका भी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। गॉट इट एवरीवन? सो दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे करना खुद, ठीक है। एंड देन np.sort, np.sort means that there is a age, there is a order। यानी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो there is a name, मुझे टपल्स में नहीं चाहिए, ठीक है, मैं ऐसे टपल्स में नहीं, नेम एंड there is a height and there is a age, ठीक है, इन दिस वे। अब ये टपल है, डेफिनेटली बाय द हेल्प ऑफ द टपल आप सिंपली डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने जो अभी आपको प्रॉब्लम बताया वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, यानी एक ही फीचर के अंदर आपके पास बहुत सारे टपल्स हैं। अब इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते रहो, इसमें से डेटा निकालते रहो, तो आपको वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन वर्क करना ही पड़ेगा। जो चीजें सीखी हैं उसके आगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द टॉपिक अगेन, देयर इज अ सॉर्टिंग। मैंने कहा ठीक है, देयर इज अ नेम, मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन एज, यानी मेरा जो पाइथन है उसे समझ में आ चुका है कि देयर इज अ डेटा and in the data there is a array name, height and name, height and age। अब मैंने कहा कि जो एक एज कॉलम मैंने क्रिएट किया है उसे सॉर्टिंग
कर दो, तो वो मुझे उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करके मुझे दे देगा। तो ये मुझे बोल रहा है ओके गैलेड 38, लैंसलेट 38 एंड आर्थर इज 41, उसने मुझे सॉर्ट करके उसके अकॉर्डिंग दे दिया। सिमिलरली आप उसके जो मैपिंग किए है उसके अकॉर्डिंग आप उसे सॉर्ट कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट अ वे कि अगर आपके पास डेटा है आप सॉर्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर फीचर ऑल्सो, यू कैन डू इट ऑल्सो। गॉट इट? सो दिस इज द वे। सिंपली मैंने कोई डेटा नया क्रिएट किया, सिंपल 130 आपको पता है शेप। लेट सपोज अब इसके अंदर मैंने कहा कुछ फंक्शंस हैं, मैक्स वैल्यू चाहिए तो इट गिव मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू, देन बी, कोई बी है यानी ए क्या था मेरा 1D, बी इज इन 2D, तो बी में मुझे वैल्यू चाहिए मैक्स, मैक्स वैल्यू दे दिया, बी में मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए मिनिमम वैल्यू दे दिया, देयर इज अ बी, ठीक है बी। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक्सिस इक्वल्स टू 1, मैंने कहा मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे, सेम बी के अंदर। अब इसने मुझे शो किया 82, 99, 69, 54, 88, 95, 96, यानी एक्सिस इक्वल्स टू 1, वाई एक्सिस। अब ये मुझे कौन सा वैल्यू दे रहा है, 82, दिस वन, देन 69, देन 54, and then I can say 88, this one 95 and then 96। अब आप यहाँ पे फिर से देखोगे ये क्या कर रहा है, इस रो में से सिलेक्ट कर रहा है और मुझे वैल्यू दे रहा है, रो रो रो। तो अगेन देयर इज द सेम कॉन्सेप्ट, यानी एक्सिस 1 मींस मैं ये ना करके, क्योंकि ये along with डेफिनेटली ये कैसा है, एक्सिस इक्वल्स टू 0, ठीक है, बट मैंने एक्सिस 1 दिया है तो मीन्स दैट आई एम जस्ट गोइंग इन दिस वे। गॉट इट? यानी मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, ऐसे अलोंग दिस एक्सिस वर्क कर रहा हूँ। सर अगर एक्सेस 0 दे तब भी तो सेम रिजल्ट आता है सर। ओके वेट, गॉट इट? समझ में आया? So that's a beauty एक्सेस डिफरेंस बिटवीन द 0 एंड द 1, क्योंकि अब ये कैसे कर रहा है आपको लगेगा कि एक्सेस 0 कॉलम वाइज, ठीक है, बट अगेन अलोंग द एक्सेस, ठीक है। तो ये इट्स अ कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, 0 मीन्स दैट मैं अलोंग द रो वाइज जा रहा हूँ एंड वैल्यूज मीन्स मुझे अलोंग द रो यानी इस तरह वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। बट इसे ऐसा मत करना कि एक्सेस इक्वल्स टू 0 मैं कॉलम ले रहा हूँ और एक्सेस 1 इक्वल्स टू रो ले रहा हूँ, नो इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द कॉन्सेप्ट, एक्सेस 0 1, ठीक है। अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है तो ये हर एक रो पे जाएगा सॉर्टिंग करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज आर्गमैक्स। आर्गमैक्स मीन्स दैट मुझे अगर इंडेक्स चाहिए, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे किसी मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स चाहिए वो मुझे इंडेक्स बता देगा। तो इट इज शोइंग क्या वो मुझे क्या दे रहा है, इंडेक्स, यानी जो पूरे मेरे एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स मुझे बता रहा है विच इज 25, वो मुझे ये वैल्यू दे रहा है। सो बट आपने कहा मुझे एक्सिस इक्वल टू 0 पे चाहिए, मीन्स दैट आप अलोंग एक्स एक्सिस वर्क कर रहे हो, यानी आपको कॉलम वाइज रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। या दिस इज काइंड ऑफ अगेन देयर इज अ इल्यूजन कि आपको कॉलम वाइज दिखेंगी, ऐसा लगेगा आपको। सो ये मुझे सबका इंडेक्स दे रहा है जो मेरे कॉलम वाइज वैल्यूज हैं मैक्सिमम। मैं कॉलम वाइज इसलिए कह रहा हूँ, दिस इज इल्यूजन, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस है बट आपको शो हो रहा है कि आप कॉलम वाइज मूव करोगे तो ये आपको उन वैल्यूज का इंडेक्स दे रहा है जो मैक्सिमम है। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 54 एंड 0 1 2 3 88, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सिस इक्वल्स टू 1 कर दोगे तो ये आपको अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो आपको उनकी वैल्यू दे रहा है। तो ये इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है, अगर मैं मैक्स करता हूँ वो मुझे वैल्यू देगा, आर्ग मैक्स मुझे इंडेक्स देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट्स इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, ठीक है। अब लेट्स सपोज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखनी है मुझे, इट्स वेरी वेरी सेम जो हमने लिस्ट में पढ़ा, ठीक है, 3:6 स्लाइसिंग पार्ट, 4 0 से डिफॉल्टली शुरू होगा, ये आपने पढ़ चुके हो तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। 0 दिया, मुझे क्या है, सिर्फ मैं उस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, 3:6 आई एम डूइंग स्लाइसिंग, तो 3 4 5 सेम, मैंने 0 से शुरू किया, डिफॉल्ट अगर मैं उसे फर्स्ट स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, स्टार्ट फ्रॉम 0 टू द 3 वैल्यू,
तो 0 1 2 3 मुझे वो वैल्यू देगा। इट्स सेम जस्ट लाइक दैट। मैंने एक Sir, एरे, यस प्लीज। सर आर्गुमेंट 25 क्या था सर, मतलब 25 कौन सा आर्गुमेंट है सर? इंडेक्स वैल्यू, देयर इज अ इंडेक्स Sir, वैल्यू। sir, हाँ I'll तो explain 25 also. 25 इंडेक्स कौन सा है सर? 25th index number is the 25th. Like 31 is the index number 0. Wait, 14th is the index. sorry, wait, just wait. This is your value, and let's suppose if I'm just giving that value, तो यानी ये क्या कर रहा है, मेरे पास 25 इंडेक्स का जो वैल्यू है विच इज द argmax। तो argmax दिस इज गिवन दैट वैल्यू। क्या अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे आपको शो करता हूँ, वेट, मेरे पास ये है, ठीक है, दिस इज द वैल्यू, और ये कह रहा है ओके इस पे गया, 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 देन चेक किया 0 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से ये अपने वैल्यूज को चेक कर रहा है, दिस वन, इन सारी वैल्यूज को। 95 इज एट 25 इंडेक्स, गॉट इट। तो इस तरह से वो अपने वैल्यूज को दे रहा है। Sir, 96 was there, sir. Maximum value is the जो भी 96. जो भी 96 है इस एट 25 इंडेक्स, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That one is the 25th index number is the 25th. तो इट्स गिव दैट पर्टिकुलर वैल्यू, वो आपको कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, वो उस इंडेक्स की वैल्यू आपको दे देगा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उस इंडेक्स का आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यू हैव टू कॉल द कि मेरे पास कौन सी वैल्यू मेरे मिनिमम इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है, तो आप उस तरह से काउंट कर सकते हो। सिमिलरली इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर सेम। क्या मैंने कहा ठीक है देयर इज इंडेक्सिंग, मैंने इसे इंडेक्स किया। अब नाउ लिस्ट में हम क्या कर सकते थे, या तो एक मैं पर्टिकुलर वैल्यू दे सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं उसे स्लाइसिंग कर सकता हूं। बट इन द एरे यू कैन गिव दैट लिस्ट आल्सो, यानी मुझे सेकंड इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, 4 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए और 9 इंडेक्स का वैल्यू चाहिए फ्रॉम एरे, तो यू कैन गेट दिस वैल्यू। दैट्स अ ब्यूटी कि आप इसमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो कि मुझे इस इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, तो आपको इस इंडेक्स का वैल्यू दे देगा। सिमिलरली मैंने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, एंड देन इन द एरे मैंने कहा ओके देयर इज अ फर्स्ट एंड 2। फर्स्ट वन मींस फर्स्ट रो पे जाओ, सेकंड कॉलम पे जाओ। फर्स्ट रो इज 73 32, इसके सेकंड कॉलम इज 34, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 34 वैल्यू, तो दैट्स व्हाई यू कैन इंडेक्सिंग आल्सो। अनदर आपने कहा ओके 1 और 2, मैंने सिंपल कहा, यानी मैं इस तरह भी दे सकता हूँ और उसे वैसे भी दे सकता हूँ। आपने कहा मुझे सेकंड रो चाहिए, सेकंड रो, आपने कहा मुझे इसका कॉलम चाहिए 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम इज 82, थर्ड रो 0 1 2 एंड देयर इज अ थर्ड कॉलम 0 1 2 3 इज 82, तो आप इस तरह से उसके वैल्यू ले सकते हो। सिमिलरली आप रोज एंड वैल्यूज में भी स्लाइसिंग कर सकते हो। 0 to 2 मींस दैट 0 और 1 रो चाहिए, कॉमा 0 और 1 रो कॉलम चाहिए, तो 0 और 1 84 54, दिस इज 0 रो, 73 32, दिस इज फर्स्ट रो, ठीक है। 2 है यानी n-1 मूव करेगा, कॉलम मींस दैट 0 कॉलम एंड द फर्स्ट कॉलम, 2 है उससे पहले, यानी 84 32 52 73 आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स। सो थ्रू दिस यू कैन डू आल्सो, अगर आपके पास 1 डिमेंशन है तो भी आप उसकी स्लाइसिंग कर सकते हो, 2 डिमेंशन है तो भी आपकी उसकी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हो, गॉट इट। सो दैट्स अ वे कि आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा ओके मैंने ये से कॉल किया, तो ये मुझे क्या कर रहा है, अपनी वैल्यूज दे रहा है जो मेरे वहां पे थी, यानी दिस वन आई कॉल इट मैट, दिस मैट, ठीक है। तो उसने वो मुझे मैट्रिक्स दे दिया। अब यहाँ पे आपने कहा मुझे रोज सारा चाहिए बट कॉलम मुझे लेट सपोज 0 चाहिए, आपने सिंपल इसे दिया तो आपको उसने दे दिया रोज, तो आपको दे दी, और कॉलम कौन सी है 0, तो 84 73 एंड 72 आपको कॉलम मिल गई। 84 73 एंड 72 रोज सारी हैं, कॉलम आपको 0 चाहिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। नाउ कम टू द पार्ट विच इज सबसेटिंग, यानी सबसेटिंग हम वहां पे क्या करते थे कि 0 इंडेक्स पे जाओ, उससे 1 वैल्यू पे सबसेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ही तो वर्क करते थे। सिमिलरली इन द दिस वे आई कैन डू सबसेटिंग आल्सो। तो मैंने कहा ओके सबसे पहले पाइथन से कहा क्या पाइथन मुझे ना मैट गेट लेस देन 50 वैल्यू चाहिए, तो इसने कहा फॉल्स टू टू, यानी ये गया हर एक मेरी रो पे जा रहा है और ये वर्क कर रहा है कि मुझे किस तरह से वर्क करना है। तो उसने कहा ओके लेस देन 50, यानी आई एम जस्ट गिविंग दैट, ये मुझे आंसर फॉल्स टू में क्यों दे रहा है, सर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया तो वो डेफिनेटली Sir, क्योंकि yes, sir.
तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। कंपैरिजन मीन्स दैट क्या वो ट्रू फॉल्स में मुझे आंसर देगा। तो मैंने कहा ओके मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो हम, आपको अगर पाइथन में याद होगा तो लिस्ट में, तो आप अगर किसी इंडेक्स का वैल्यू लेते, ए है 1 2 3 4, मैंने कहा ए ऑफ 0, तो ये मुझे वैल्यू देता था ना। तो इसी तरह मुझे क्या करना पड़ता, जिस वेरिएबल में स्टोर है उसे कॉल करना पड़ता था विद अ स्क्वायर पैरेंथेसिस। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैंने कहा ओके पाइथन मुझे वैल्यूज चाहिए, तो आप क्या करो, मैट पे जाओ और उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी वैल्यूज दे दो जो लेस देन 50 है। तो इसने बताया ओके 18 49 एंड 11 दीज आर द वैल्यूज। गॉट इट। मैंने कहा ओके सिमिलरली नॉट इक्वल्स टू वाली वैल्यू दे दो जो 50 के इक्वल नहीं है, तो उसने मुझे वैल्यू दे दो। दिस इज द सबसेटिंग, इट इज सेम एज लिस्ट। जैसे लिस्ट पे वर्क करते थे ऐसे ही यहाँ पे वर्क करें। डेटा फ्रेम पे जाएंगे तो हम इसे थोड़ा सा और इलैबोरेटली देखेंगे क्या और चीजें हो सकती हैं, ठीक है। बट वी आर डूइंग दैट सबसेटिंग आल्सो इन द एरे। लेट सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, दिस इज जस्ट अ एरे। हिंट मिल गया यार, चलो लेट्स सी। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, मेरे पास एक एरे आ गया, इट्स 11 12 13। स्लाइसिंग कर सकता हूँ सिंपल, मैंने एक वेरिएबल में असाइन किया, स्लाइसिंग किया 2:2, ठीक है। ये मुझे एग्जांपल यहाँ रखना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो मैंने स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ, यानी 0 1 रो एंड 0 1 कॉलम, मैंने सिंपल स्लाइसिंग कर लिया। अब मैंने क्या किया, सिंपल असाइन किया है, ठीक है, एक वेरिएबल में। मैंने कहा ओके मैट की स्लाइसिंग में 0 0 पे जाओ, 0 मीन्स दैट 0 रो पे जाओ और 0 कॉलम पे जाओ, उसमें 1000 असाइन कर दो। मैं मैट पे गया, ठीक है, तो मैट पे उसने क्या किया, वहां भी चेंज कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है क्यों चेंज कर दिया, ठीक है, एवरीवन नोज क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ पे चेंज कर दिया। यानी अगर मुझे कोई डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करना है फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स, देन हाउ टू डू इट, ठीक है, वो आपको पता है क्या, वो मेरी फर्स्ट जो ऑर्डिनल मैट्रिक्स है या एरे है उसको चेंज ना करे, ठीक है, उसको मॉडिफाई ना करे। इट्स सिंपल, ठीक है। तो मैंने कहा ओके नेक्स्ट मैट्रिक्स क्रिएट किया, सिंपल, मैंने उसका एरे क्रिएट किया, सेम। अच्छा इसको रिपीट हो गया 0 0 मीन्स आई कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, दिस इज द वे, मैट्रिक्स 2 2, मैट स्लाइसिस मैंने 1000 क्रिएट किया, असाइन किया, वेट मैं आपको शो करो, मैट स्लाइस। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस है, मैंने अभी सेम वर्क ही तो किया, कुछ चेंज तो किया नहीं, बट यहाँ पे मैंने जब मैट किया तो ये मैट पे चेंज क्यों नहीं कर रहा, कुछ समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। यानी सर वहीं पे आपने स्लाइस का ये लिखे हैं, मैट कहाँ, अंडरस्कोर स्लाइस। नहीं वो तो सेम है, मैं एक मिनट शो करो, म्यूट करो। दिस इज माय मैट्रिक्स, ठीक है, मैंने मैट्रिक्स स्लाइस में से क्रिएट किया विच इज 2:2। जब उसके 0 कॉलम 0 रो पे मैंने 1000 असाइन किया तो वो मेरे ऑरिजिनल मैट्रिक्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, बट सेम केस मैंने यहाँ पे किया और 1000 असाइन किया तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा, मैट्रिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब ये क्या है, दिस इज अगेन योर असाइनमेंट, ठीक है, ये मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में ये क्यों हो रहा है ऐसा। आपके पास 2 असाइनमेंट है और मैं दोनों के आंसर ना ऑलरेडी दे चुका हूँ, मतलब जो नेम वाला है उसका भी आंसर दे चुका हूँ और इसका भी आंसर आपके पास है, अब वो उसे देखना और समझना। लेट्स सपोज देयर आर सम यूनिवर्सल फंक्शंस, मैंने 2 क्रिएट किए एरे 2 डायमेंशन, ठीक है, देयर इज अ 1 सेकंड एरे, मैंने डायरेक्टली ऐड ऑन कर सकता हूँ, यानी 7 + 3, यानी वो इंडेक्सेस वाइज अपने आप ही अकॉर्डिंग इसके वेक्टर क्रिएट करता है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवीजन कर सकता हूँ, किसी भी स्केलर इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ax² + bx + c काइंड ऑफ कर सकता हूँ, मैं मैट्रिक्स की पावर से स्क्वायर कर सकता हूँ, मैट्रिक्स कॉल किया पावर 2 कर सकता हूँ, एक्सपोनेंट यूज कर सकता हूँ, मैं ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, जो आप चाहो वो कर सकते हो, किसी स्केलर वैल्यू से आप प्लस भी कर सकते हो। जैसे ही आप प्लस करा 100 + मैट्रिक्स 1, इसने 100 सम में ऐड कर दिया, ठीक है। लेट सपोज मैंने ये, अब ये आप लोगों को पता है ये क्या है, ये क्या करता है, ये मैं नहीं बताऊंगा ये क्या करता है, ठीक है। मेरे पास आंसर आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, मुझे नहीं पता, सारे मैंने आंसर यहीं पे लिख दिए।
अब आपको पता ही चल गया होगा वो क्या है, ठीक है। तो यू कैन डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन हियर, ठीक है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द एरे। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज ब्रॉडकास्टिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सपोज मैंने एक जीरो मैट्रिक्स क्रिएट किया 3:3 का, थ्री का मैट्रिक्स क्रिएट किया, ठीक है, सिंपल। और मैंने कहा एक मेरे पास रो है 102, देयर इज अ सिंपल रो 102। अब मुझे ये रो ऐड करनी है किसमें, मेरी जो मैट्रिक्स है स्टार्ट में ऐड करना है, यानी 000 मैं चाहता हूँ 102 उसके नीचे एक मैट्रिक्स आ जाए, सॉरी एक रो आ जाए, यानी मैं ऐसे 000000000 एंड 102 मैं ये चाहता हूँ ये आ जाए। लेट्स सी, मैंने कहा ठीक है तो ऐड कर देते हैं, हमें पता है कि सिंपल अभी तक हम ये प्लस और ये सब आया देखा है, तो मैंने कहा ठीक है सिंपल इसे ऐड कर दो। बट देखो उसने क्या किया, हर एक रो पे जाके 102 को ऐड किया, एक नया रो क्रिएट नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी, यानी ये कोई प्रॉब्लम है, इसे रिजॉल्व करेंगे, देखते हैं अभी। देयर इज अ एच स्टैक एंड द वी स्टैक। देन मैंने द ब्रॉडकास्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ओके मुझे अब कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो कॉलम मींस दैट सिंपल 000 था, 000000000। अब 102 तो मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है 102, इसे क्या है मुझे कॉलम में ऐड करना है। कॉलम मींस दैट मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेस चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे कैसे लिखना पड़ेगा 102। तो इन द numpy also there is a function which is t, means that I am doing transpose of this array। यानी ट्रांसपोज का मतलब जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5, अगर इसका डिमेंशन देखूंगा विच इज 2:3, अगर मैं डॉट टी करता हूं तो मीन्स दैट आई एम जस्ट चेंजिंग देयर एक्सेस इनटू 3:2। 3:2 मीन्स दैट मैंने क्या किया, कितनी उसकी रोज क्रिएट करी, 3 रोज क्रिएट करी, और कॉलम्स कितनी क्रिएट करी, 2 क्रिएट करी। यानी मैंने क्या किया 0 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कॉलम्स 2 एंड दे आर 3 रोज, ठीक है। सिंपल ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया एवरीवन, आई एम जस्ट चेंजिंग देयर dimension। dimension means that not sorry I'm changing their shape 2:3 to 3:2, ठीक है। अगर जो मैट्रिक्स में जिन्हें 12th में पढ़ा होगा वो उन्हें पता है कि there is a dimension, ठीक है। तो 2:3 को मैंने 3:2 में किया, there is a transpose, तो आई एम डूइंग ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो किस में है मेरे पास सिंपल 1 शेप में है, और शेप कैसा है 0, यानी 0 मीन्स दैट 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स मीन्स दैट 0 1 2, ठीक है। पाइथन के रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, अगर आपको मैथमेटिकल रेस्पेक्ट में 1 and 3, यानी 1 is your column, is row, 3 is your column, 3 columns, ठीक है सिंपल। तो मैंने कहा उससे पहले ट्रांसपोज कर लेते तभी तो मैं उसे कॉलम को ऐड कर पाऊंगा। मैंने ट्रांसपोज किया तो आप देख सकते हो ये आपको, तो इसने क्या किया आपको ट्रांसपोज करके दे दिया, गॉट इट सिंपल। मैं कहा ठीक है इसे ऐड कर देते हैं, इसने ऐड किया तो इसने कॉलम वाइज सब में ऐड कर दिया, यानी एक नया कॉलम क्रिएट नहीं किया, इसने ऐड कर दिया। सो दिस इज द नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, यानी आप क्या कर रहे हो, जो भी अगर आपको इस तरह से रो ऐड करनी है कॉलम ऐड करनी है, ये जितना उसका डिमेंशन मैट्रिक्स है ये उसी में वर्क करेगा, एक नया कॉलम या रो क्रिएट नहीं करेगा। अब मुझे सेम वर्क करना है तो आई कैन डू बाय द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टैक, क्योंकि आप दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टैकिंग, क्योंकि जो एरे है इट इज कॉन्सेप्ट 1 2 3 4, तो आपके लिए वो रोज हैं बट पाइथन के लिए वो क्या है स्टैक है। दिस इज अ स्टैक 0 1 2 3, लेट्स सपोज देयर इज अनदर स्टैक वर्टिकल स्टैक हॉरिजॉन्टल स्टैक, यानी आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो या वर्टिकली स्टैक को मूव कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। अब लेट्स सपोज अगेन वही कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, मैंने कहा वी स्टैक, V stack is vertically stack, यानी vertically means along this axis, horizontally means that along this axis, क्योंकि मैं इस एक्सिस के along चल रहा हूं, तो ये हमेशा ध्यान रखना ये इसी तरह मूव करता है along the axis, stack and the V stack। तो मैंने कहा there is a array, again I have created my array, ठीक है, simple B array
एच स्टैक यानी मैं हॉरिजॉन्टली इसे मूव कर रहा हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पे मैंने 10, 20, 30 को स्टैक किया तो मेरे पास एक न्यू कॉलम क्रिएट हो गया। वर्टिकल स्टैक यानी अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर रहा हूँ तो मैं स्टैक बी को क्रिएट किया, मेरे पास 10, 20, 30 क्रिएट हो गया। गॉट इट? हाउ टू क्रिएट न्यू कॉलम्स, हाउ टू क्रिएट whatever the things, we have finished our numpy. ठीक है, this is the basic numpy. It's very very important. In the numpy there are maybe thousands of functions. I cannot cover each and every function in the numpy. Maybe if you go for the Python documentary, you can go for the numpy documentary, then you can find it or what are the functions. But all the जितने भी important functions थे numpy के वो मैंने यहाँ पे cover कर दिए। Got it everyone? जितने भी इंपॉर्टेंट था द बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। फंक्शंस बहुत सारे हैं, अगर मैं एक एक को फंक्शन यहाँ पे लिखूंगा वो ना आपके यूजफुल के हैं ना मेरे लिए यूजफुल रहेगा क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग है। अगर लेट सपोज आपको कुछ फंक्शन देखने तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, द बेस्ट सोर्स इज द पाइथन डॉक्यूमेंटेशन। numpy का डॉक्यूमेंटेशन है, यू विल फॉलो ईच एंड एवरीथिंग देयर। ठीक है, मैं इसलिए क्योंकि देयर सम आई कैन से देयर सम मे बी सम गुड डेटा साइंटिस्ट आई यूज्ड टू फॉलो, देयर इज अ नेम ऑफ कोरी शेफर, यू कैन फॉलो इट, देयर इज अ होलोस्की, यू कैन फॉलो इट। उनको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो वहां से आपको एक सब्सटेंशियल मिलेगा जिससे आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज चीजों को करते हैं। और स्टैंडर्डाइज से करने से आपको फायदा क्या मिलता है कि कोई भी ऐसा मिसकॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा जो शायद लोग गलत बताते हैं। अगर आप देखोगे मे बी अगर यू फाइंड सम numpy लेक्चर्स मे बी किसी इंडियन का देखोगे, आई एम नॉट ह्यूमिलेटिंग अगेन, देयर सम गुड डेटा साइंटिस्ट आल्सो, दे आर वर्किंग वेरी वेरी वेल। अगर आप numpy में एक्सेस 0 देखोगे 1 देखोगे वो आपको बोलेंगे नहीं एक्सेस 0 इज कॉलम, एक्सेस 1 इज योर रो। नो, वो ऐसे वर्क नहीं करता। जैसे वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, आपको अब समझ में आ गया। वर्टिकल स्टैक में अगर वर्क कर रहा हूँ तो मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, अलोंग द एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ अलोंग द वाई एक्सिस। तो अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अगर मैं वहां पे एक्सेस 0 आपको कहता हूँ कॉलम वाइज, एक्सेस 1 इक्वल्स टू रो वाइज, तो आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये क्या मतलब, कंफ्यूजन तो नहीं होता बट आप एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं और वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होता। ठीक है, तो हमेशा जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। यू हैव टू जस्ट गो डीप डाइव, स्पेशली जब आप डेटा साइंस में जा रहे हो तो आपको हमेशा उसके डेप्थ तक जाना है, तभी आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनोगे। अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट, फिर वो कॉन्सेप्ट जहां आप अपनी काइंड ऑफ बाउंड्री क्रिएट किया है वहां तक चलेगा, लेकिन आउट ऑफ द बाउंड्री जाओगे तो फिर वो फेल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट numpy। मैं असाइनमेंट आपको मिल जाएगा शाम तक। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एच स्टैक एंड ओके। सो लेट्स सपोज मीनाक्षी, there is a A and in the A 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 रो 1 रो फर्स्ट रो। अब देयर इज अ रो लेट्स सपोज B, मुझे 10 100 एंड 1000 इसे क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, रो वाइज ऐड करना है, सिंपल। ठीक है, तो रो वाइज ऐड करना है यानी अब इन द numpy there is a concept which is related to the stack। अगर मैं a plus b कर दूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे आंसर क्या देगा, 10 101 and 1002 which is 13 04 and 005 and then 16 and then 07 and 008। ठीक है, अगर मैं सिंपली ये करता हूँ क्योंकि विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग, बट मुझे तो एक रो इंसर्ट करना है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, स्टैक नहीं समझ में ना, लेट्स सपोज यू कैन जस्ट कॉल इट कि मुझे एक रो इंसर्ट करना है। तो अब ठीक है, मुझे रो इंसर्ट करना है तो मैंने कहा ओके, सिंपल रो इंसर्ट कर लेते हैं। अब रो इंसर्ट करना है तो मींस मुझे क्या करना है, इसे ऐसे समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 एंड 1000। इसी को तो कहेंगे रो इंसर्ट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी मुझे कैसा चाहिए, एक पाइलअप चाहिए। कैसा पाइलअप चाहिए, वर्टिकली। तो यानी अगर मुझे रो इंसर्ट करना है तो आई कॉल इट एज वी स्टैक। ठीक है, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस मुझे मूव करना है। ठीक है, दिस इज द अलोंग द एक्स एक्सिस, तभी आपका पाइलअप होगा। ठीक है, स्टैकिंग कर रहे हो ना, यू आर जस्ट स्टैकिंग, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यू आर जस्ट स्टैकिंग।
सिमिलरली अगर मैंने कहा मुझे कोई कॉलम ऐड करना है, लेट्स सपोज मुझे अब इसमें क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, तो मेरे पास तो जो एरे क्रिएट होगा वो इसी डिमेंशन में क्रिएट होगा। तो मैंने कहा ओके मुझे कॉलम ऐड करना है, तो मैं क्या करूं, बी डॉट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या करेगा, अभी ये क्या है 1:3 का है, तो 3:1 का मुझे बना के दे देगा, यानी 3 रोज 1 कॉलम, क्योंकि 1 2 3 रोज है और कॉलम मुझे ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे 10 100 एंड 1000 ऐड करना है। अब मुझे स्टैक कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली स्टैक करना है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज एच स्टैक, ठीक है। यानी कॉलम, अब आप कॉलम ऐड कर रहे हो तो आप सोचो कि कॉलम ऐड करना है तो यानी देयर इज अ एक्सिस इक्वल्स टू 1, सिंपल ये करना है। बट वो हॉरिजॉन्टली अलोंग द एक्सिस मूव करते हैं, यानी नमपाई में हम जब भी वर्क करेंगे अलोंग द एक्सिस मूव करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्या मैंने बोला अलोंग द एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल स्टैक, एच स्टैक इज हॉरिजॉन्टल, यानी इन दिस वे, यानी वी स्टैक मीन्स दैट मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ, क्या उसकी एक्सिस के अबाउट, यानी मैं इस एक्सिस पे वर्क कर रहा हूँ। गॉट इट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। गॉट इट मीनाक्षी? ओके, so this is all about the numpy, ठीक है। in the next classes we will do pandas, ठीक है। जिस अभी पाइथन का जो जिसको टॉपिक पढ़ाने थे कुछ स्टूडेंट मिसिंग हैं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू, ठीक है। आज नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पाइथन करेंगे, ठीक है। तो पंडास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, एंड देन जैसे कि सर मेरा जो क्लास छूटा हुआ है सर, वो ही करने वाला है सर। हाँ, ये वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे मतलब मैं स्टूडेंट बनूंगा और टीचर मेरे ओके, आप स्टूडेंट बनेंगे, अरे सर। चलो ओके, आई एम रियली व्हाट मे आई से। चलो लेट्स सी, जस्ट डू योर वर्क, ठीक है। और मुझे फिर बताना, सिखाना, नई नई चीजें सिखाना, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है एवरीवन। ओके, असाइनमेंट आपके पास आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा और उसे असाइनमेंट को करना। तो आपके पास असाइनमेंट कितने हैं, 3 असाइनमेंट हैं। फर्स्ट असाइनमेंट इज दैट क्या आपको पढ़ाना है, सेकंड असाइनमेंट इज दैट नंपाई का असाइनमेंट करना है, थर्ड असाइनमेंट मैंने जो क्वेश्चन दिए उसको करना है, ठीक है। ओके एवरीवन, एनीवन हैविंग एनी डाउट? सब वो एक बार ही वो जो आपने 2 क्वेश्चंस दिए थे सब वो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं भूल गया। सर वो फर्स्ट वाला तो प्लीज कर ही दो, वो वैल्यू वाला था ना कुछ उस पे, एज वाला। एक देयर इज अ क्वेश्चन क्या उसमें क्या है, हमने एक नेम हाइट एंड एज का डेटा टाइप किया, ठीक है, और एक एरे क्रिएट किया। और वो एरे क्रिएट जब मैं कर रहा हूँ वो 3:3 एरे में मुझे क्रिएट करना है कि नेम का नेम के अकॉर्डिंग आ जाए, एज का एज आ जाए एंड हाइट के अकॉर्डिंग आए। दिस इज द क्वेश्चन। मैंने जब उसे रीशेप किया 3:3 तो वो मुझे शो नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट लेट्स सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया, ठीक है, उसमें से स्लाइसिंग किया, स्लाइसिंग 2:2 का किया और मैंने उसे एक वैल्यू दिया 1000 0:0 पे, यानी उसके 0 इंडेक्स की 0 रो 0 कॉलम पे इंडेक्स की वैल्यू 1000 दिया। तो वो सेम रिफ्लेक्शन मेरे ओरिजिनल एरे में भी दे रहा है। बट फिर मैंने उसे सेकंड मेथड से किया, सेकंड मेथड पे मैं उसका नाम नहीं दूंगा क्योंकि समझ जाओगे आप लोग। सेकंड मेथड से किया, सेम स्लाइसिंग किया, 0 इंडेक्स 0 रो 0 कॉलम पे मैंने उसे 1000 असाइन किया, बट वो फिर ओरिजिनल मेरा जो नेम था मैट्रिक विच इज द वेरिएबल नेम, उसमें वो रिप्रेजेंट यानी उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। गॉट इट? दीस आर द क्वेश्चंस। क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? थैंक यू सर। ओके, अच्छा सर, हम लोग इसमें जो मैट्रिक्स को सब मल्टीप्लाई करें तो सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सर फॉलो करेगा ना सर वो? हाँ, इट्स रियली ग्रेट क्वेश्चन। असाइनमेंट में आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे विच इज द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। यू हैव टू डू, ठीक है, वो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा वो मतलब दीस आर द क्वेश्चन, सब कुछ मैं अगर इसमें हाँ समझा दूंगा तो फिर असाइनमेंट में क्या करोगे, ठीक है। वहां पे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करना। देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। What means that let's suppose numpy is just kind of maybe अगर आप vectors का knowledge है तो numpy is just kind of vectors. So we are just creating the vectors through the numpy. So there is a dot product and the cross product. So if you are just doing your multiplication in the matrices, जैसे let's suppose अगर किसी को नहीं है तो मैं थोड़ा सा hint दे देता हूँ, सबने पढ़ा ही होगा 12th में maybe. Let's suppose 3:3 and 2:3. तो मेरे पास मल्टीप्लीकेशन होके 3:3 का मैट्रिक्स बनेगा, ये बनना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई देयर इज सम क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, यू हैव टू सॉल्व इट।
अब ये कैसे होगा, यानी मैंने वहां दिया हुआ है, यू हैव टू मेक योर मैट्रिक्स, देयर इज अ 2 मैट्रिक्स 3:3 एंड देयर इज अनदर मैट्रिक्स 2:3, then you have to create a new matrix whose size is, or maybe the dimension, or you can say the reshape or the shape is 3:3. You have to create that matrix also. अब कैसे करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर मैट्रिसेस, कैसे करोगे उसमें ब्रेन यूज करना अपना, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? तो सब कुछ है असाइनमेंट में, देयर आर सम वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस इन द numpy, तो वो थोड़े से टफ भी हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड है क्या, बट नो नीड टू वरी, हमें हार्ड पार्ट ही कवर करना है, इजी पार्ट तो आप कर ही लोगे, जो पिक्चर है, जो एक्चुअल पिक्चर है, हमें उसी पे वर्क करना है। तो असाइनमेंट इज नॉट फॉर जस्ट गेटिंग द गुड मार्क्स, असाइनमेंट इसलिए है क्योंकि आपको लर्निंग करना है, दैट्स व्हाई दैट्स अ रीजन ऑफ असाइनमेंट, इसलिए नहीं क्योंकि आपको मार्क्स लाना है, देन आई विल जस्ट मेक अ शीट एंड वो शेयर करूंगा, उसमें आप टॉप पे दिखाई दे रहे हो। लिटरली अगर आप टॉप पे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, लिटरली अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जब टॉप पे हो तो आप क्या सोच रहे हो, मे बी अगर आप खुद कर रहे हो विदाउट टेकिंग एनी, नॉट हेल्प तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ चीटिंग नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू आर रियली गुड। बट आपको अगर मार्क्स चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, और मार्क्स से आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो, तो देयर इज नो, रियली देयर इज नो मीनिंग, नो नीड टू डू। So that's why do honestly, take your help, definitely this is your right, according to the article 21, this is your right, you have to just follow these concepts, ठीक है। वो सॉरी हेल्प ले लो हेल्प ले लो, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, उसके पीछे आपको, यस प्लीज। आर्टिकल 21 पाइथन में आता है? ओके, वी विल डिस्कस लेटर, ओके, नो नीड टू वरी। सर असाइनमेंट कब तक अपलोड होगा? बिफोर 7। बिफोर 7, ओके। एनीवन, यस प्लीज। सर मैं तो ये जो नेविगेटर डाउनलोड कर दिया हूँ, बट जुपिटर आ रहा, स्पाइडर नहीं आ रहा सर, थोड़ा देखिएगा सर। ओके ओके, वेट, जस्ट वेट वेट wait, I'm giving permission to you. Yes, now मैं अभी मोबाइल में कनेक्टेड हूँ सर, लैपटॉप कनेक्टेड नहीं हूँ सर। जब लैपटॉप में कनेक्ट हो जाओ तब स्क्रीन शेयर कर देना, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन, स्पेशली फॉर योर हेल्थ, ठीक है, चलो ओके बाय।